की Ma'am, class sound करें, is क्योंकि breaking. sound is breaking. It's clear Yes, now? ma'am. Yes, we cannot hear you. It's like breaking. Yeah, a little bit now. Yeah. Okay, just check your signals Can you because can you please repeat? Can you please repeat this yes, Kapal yes. Bhati, this Om, Yeah, what I'm you were on the saying first now? point only. I'm on the first point only. See, Okay. Jalaneti is optional, and Kapalabhati का क्या करना है? Kapalabhati, suppose you have planned for 100 strokes for that session, so do it 30, then Om chanting, again 30, Om chanting, and then 20 or 30 or 40, how you want to plan it. तो बट 30 के बाद आप ओम 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 5 बार बुलवाएं. Why I'm telling you to give this intermittent ohms, because they will be जैसे कपालभाति पहले 5-6 स्ट्रोक के बाद it will not be, they will not be interested to do the same thing time and again, so they will be distracted. उनको कुछ और चाहिए होता है, जैसे बोलते हैं ना, they need something tricky, they need something different. They will not sit for more than 2 minutes in one place. 2 minutes भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप उन्हें बिठा पाएंगे तो, ADHD के जो टिपिकल केसेस हैं. सो टेल देम टू डू कपालभाति, देन से नो नो नाउ विल डू समथिंग एल्स, फिर ओम कराएं, फिर से बोले हम अब पहली वाली टेक्निक करेंगे, कपालभाति कराएं, फिर से ओम कराएं. With ADHD you have to be so alert, so conscious and so energetic. जितनी एनर्जी से वो काम कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी से आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा, because otherwise they will lose interest. Okay, if you will be dull enough to give instructions, then they will lose interest in that. तो आपको वैसे ही टोन में, वैसे ही प्यार से उनको सारी टेक्निक्स धीरे धीरे करानी है. और कपालभाति विद ओम चैंट्स गिव लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड दे विल नॉट लूज इंटरेस्ट. कि आपको अगर आपने प्लान किया है, आप उनको बेनिफिट तो कपालभाति का ज्यादा दे रहे हैं, बट इसमें ओम के साथ कराएंगे तो एक तो वाइब्रेशंस होंगी ओम की बीच में, एंड दे विल, ओम के साथ उनका एक कनेक्शन फिक्स होगा. अगेन दे विल कम बैक टू कपालभाति आफ्टर 5 breathings, long breathings with long omkara. They will again come back to hyperventilation. Okay, Kapalbhati. Again they will go back to Om. तो ऐसे ऐसे करके ऑल्टरनेटली उनको कराते जाना है. और आप देखिए कोई भी मेंटल केस है या फिर मनोवेग उनका बहुत बड़ा हुआ है, स्पीड ऑफ थॉट्स एंड so many things happening in the mind, और किसी भी एक चीज पे टिक के फोकस नहीं है लाइफ में उनके, तो ऐसे लोगों को ज्यादा डायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, डायनेमिक प्रैक्टिसेस. ओके, even it works for depression cases, it works for anxiety cases, it works for paranoia, bipolar disorder, it works for almost all abnormal cases. ठीक है, those who are having abnormality at the mental level, सबको dynamics कराने ज्यादा important होंगे, because once they will be tired, you need that you need to tire them with your practices. उनको 1 घंटा जम की ऐसी प्रैक्टिस दें कि वो थोड़ा सा थक जाएं और शवासन अच्छे से करें फिर बाद. ओके, सो दैट इज द आइडिया. ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में डॉग ब्रीदिंग कराएं. देखिए इसमें भी थोड़ी सी तेज ब्रीदिंग इन्वॉल्व है. टाइगर ब्रीथ कराएं, सेतुबंद आसन ब्रीदिंग कराएं. ब्रीदिंग में सिर्फ 3. शिथिलीकरण व्यायाम में ताड़ासन वॉकिंग, ड्रिल वॉकिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, एनिमल वॉक्स अच्छे से करा सकते हैं अगर बच्चे हैं. अगर बड़े हैं तो सिर्फ ताड़ासन वॉकिंग एंड drill walking, heel walking, toe walking, कुछ भी, whatever you want, you can give them in a flow practice. Flow मतलब एक flow बना हुआ है movements का, वैसी तरह की practices. Then forward bending, backward bending, spinal twists, side bending, elbow movements, arm rotation. और ऐसे patients को बीच में ज्यादा gap नहीं देना 2 practices के बीच में. Hello. Hello. Yes. Hello. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt. I'm Yeah, Kavita Kumar. Ma'am, I'm having one small request. If possible, could you able to send the link for this tiger breathing, drill walking, and dog breathing? Is there any video available for the same? Video, you can just put it on the net. I think tiger breathe is well versed. It is available. And dog breathing, I will see. Dog breathing. Drill walking is what? Drill walking, I'll explain you now itself. It is like you have done march past. Yeah, ma'am. स्कूल और कॉलेज है ना, जैसे हाँ, मार्च पास्ट करते हैं
you have to tell the patient to take the round of that your yoga hall या फिर आपका room, जिस भी रूम में करा रहे हैं या योगा हॉल में करा रहे हैं, पूरी हॉल के एंड टू एंड पूरा बड़ा सा राउंड लेना है विद योर मार्च पास्ट. बट मार्च पास्ट कैसे करनी है? इट्स नॉट टिपिकल मार्च पास्ट ऑफ दैट रिपब्लिक डे व्हाट वी हैव बीन ट्यून्ड टू. सो दिस ड्रिल वॉकिंग इन्वॉल्व्स द फोल्डिंग ऑफ द नीज. दैट्स इट. हाथ आपको ऊपर लेके जाने हैं, हाथ और पैर ऊपर ही लेके जाने हैं जैसे हम मार्च पास्ट में करते हैं. बट इन दिस जस्ट फोल्ड योर नीज एंड keep walking, keep marching. That's it. That is drill walking. Okay. Folding the knees, not keeping the knees straight like the army personals or the RD public parade. वो नहीं. So in this knee folding is involved. Rest everything is same. You have to look forward, neck up रख के आपको आगे के आगे 3-4 बड़े-बड़े rounds लेने हैं आपके रूम के या योगा हॉल के. Okay. And Tadasana walking is, in Tadasana you're walking on the toes. That's it. Heels up, you're walking on the toes and छोटे-छोटे steps लेने हैं. Synchronize your breathing with the steps. Like in 5 steps you inhale and the next 5 steps you exhale. Okay. And in that Tadasana matlab you are stretching the arms up with interlocked fingers above the head and you're stretching your body and you're walking the whole your periphery of your hall or your yoga room, wherever you are taking. Okay, this is also in in a circular motion. So Tadasana walking, drill walking, forward bending, then spinal twist, side bending, elbow movements, arms rotation. और किसी भी 2 practices के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा gap नहीं. You have to make sure that the person doesn't, fall off the track. Or they don't get into any other whirlpool of thoughts. कुछ और दिमाग में ना आए, इससे पहले आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिस आपके लिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए. ओके, वंस यू हैव स्टार्टेड विद सूर्य नमस्कार, सपोज सूर्य नमस्कार तो 8 से 10 राउंड कराने चाहिए इनको. योर एम इज टू make them flexible and rejuvenate their cells, everything whatever we are doing in other therapies also. But here, especially mentally, you have to engage them in some qualitative exercises. So, आपको ज़्यादा exercises करानी है कम time पे. It is like this. Okay. So, side bending एक के बाद एक कराते जाना है. Okay. A flow of practice as if they should feel they have done something with their body. And when their body will be tired enough, when their body is giving signals to slow down, बस बहुत हो गया, थक गए, the mind will also need little rest. The mind is saying, in fact, कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, थकावट हो गई body को. Then the mind will also sense that इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा. They will say कि सर थक गए, सर बहुत हो गया, नहीं इससे ज़्यादा नहीं हम कर पाएंगे. You have to still keep pestering them. नहीं, थोड़ा और कुछ और rounds करेंगे इसके. So let them sweat, let them feel lighter, let them be light at their body and the mind. When this lightness really enters the Manomaya Kosh, then you have won or then you have achieved some percentage of benefit for that patient. Then asans mein Tadasana, Trikonasana, Vrikshasana, Utkatasana, Ardha Chakrasana, Padhastasana. Yeah. Ma'am, yes. Sorry, one more doubt, ma'am. This asanas, do we need, do we ask them to do it 2-3 times or otherwise only one time is enough? No, once is enough. Once is enough. If you feel the patient is not holding the position. Okay. It will happen. They will not hold the position for long. Then tell them, नहीं आपको आज ये 3 बार कराना है, 3 बार करना है आपको ये. Because you're not holding. If you hold it for 30 seconds, then only I will make it once. Okay, ma'am. ठीक है. हाँ. Tell them in this, जैसे बच्चे को लालच देते हैं ना, अगर तुम ज्यादा करोगे तो मैं बार बार नहीं कराऊंगी. अगर तुम 10 सेकंड में ही वापस आ जाते हो तो फिर तो तुम्हें 30 सेकंड कंप्लीट करने. You have to do 3 times 10 seconds. So that's how at least 30 seconds का एक posture जरूर complete करवाएं. It depends on you and it depends on the patient also. कितना वो concentration के साथ, focus के साथ कर पाते हैं. Okay. So Parvatasana, Purvottanasana, welcome. Yoga Mudra Asana, Navasana, Bhujangasana, Dhanurasana, Sarvangasana, Setubandhasana, Shalamasana, Chakrasana, followed by
half time in halasan. शवासन जरूरी है बहुत ज्यादा. Yes, anyone else? Someone was asking me. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि, चंद्र भेदना, because already their speed of mind is too much. You have to slow down that. Body की cooling के लिए चंद्र भेदी would be best, because already you have exerted much in asanas, in शीतली कर्णयाम, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, breathing practices. ठीक है, उससे पहले अगर आपने कपालभाति ओम चैंट कराया है तो सूर्य नमस्कार. So much body has exerted much now. Now let it cool down in pranayama phase. So Nadi Shuddhi, Chandra Vedana, Bhastrika, Shitli Shitkari, Brahmari. सभी कराएं 5 rounds सबके. Okay, Nadanusandana. पहले they will not be able to sit for Nadanusandana practice, but eventually you have to make sure that they are sitting for some 2 rounds of U and Ma and then Ma together. Then comes mind ki side mein. I've added the last point. Now ADHD persons. Now this was a point of autosuggestion. एक normal patient है diabetes का या migraine का या sinusitis का या arthritis का. So they should be taught, and they should be made to learn that they have this problem in this area, and they will come back when they commit for certain practices daily. ठीक है, तो थोड़ा आप फेथ गेन करते हैं जब उनको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है. बट ऐसे केसेस में व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट द फीडबैक आल्सो फ्रॉम द पेशेंट, फीडबैक भी नहीं आपको उनसे आएगी, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो बिल्कुल केयर टेकर्स हैं, जो उनके मेंटर्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो आपको फीडबैक दे सकेंगे आफ्टर अराउंड 2 weeks or 3 weeks that yes, this patient is now behaving little according to required, little according to what instructions we give. So as per their feedback, you will be knowing that the patient is improving. So ADHD persons, parents, older siblings, caretakers understand the problem better discussing with yoga teachers. So you have to counsel them and not the patient कि आपको अच्छे से behave करना है, आपको ऐसे करना है. For them you have to just give the yoga module. सिर्फ एक योगा practice set जो है उनके साथ वही follow करिए. But जो उनके mentors हैं या parents हैं, ठीक है, immediate caretakers हैं, उनके साथ आप regular counseling में रहें और उनको instructions देते रहें. Okay. Then this was ADHD. Now we'll move on to, just a minute. Now we'll go for the day 10 slides. Day 10 includes yoga and stress and hormonal disorders. So let's start that topic. So as I've already discussed stress ko I have already discussed in my first or second lecture itself. So it's one of the very common definitions which Dr. Selye and Dr. Levy has given us regarding stress. Stress is a non-specific, conventional and phylogenetic basic response pattern. So in an average adult, in a normal adult, it is a non-specific, conventional, phylogenetic basic response pattern. ये non-specific है. It is not specific. आप बचपन में अगर आप lizard से डरते रहे हैं, तो आप बड़े होके भी lizard से उतना ही डरते रहेंगे. Okay? So it's not specific, stress pertaining to you. So with age, you are also maturing. With age, the stressors in your life at your adolescent are no more stresses in your life at a 40-year-old or a 50-year-old age. Okay. Then conventional. Conventional मतलब पहले से चले आ रहे हैं. आपके जो एक डर है wild animal का, वो सबको ही है, पहले से ही चला आ रहा है. And we know that is dangerous for us. Okay. You cannot live in a jungle with no protection. If you want to live in a jungle, you have to have a iron made houses or the
जो जंगले होते हैं उनमें एटलीस्ट अगर आपको कोई स्टडी करनी है, ऑब्जर्वेटरी तैयार करनी है, तो उसमें आप थोड़ी दिन के लिए रह सकते हैं, बट विथ टोटल प्रोटेक्शन, so that the wild animals do not attack you. So conventional है, पुराना चलता आ रहा है, और स्ट्रेस हर एक सोसाइटी में है. इट इज नॉट दैट ओनली इंडियंस सफर. फाइलोजेनेटिक बेसिक रिस्पॉन्स पैटर्न मतलब इट इज इन आवर जीन्स. ये जो थोड़ा सा फियर क्रिएट हो जाता है या डर है सिचुएशन के आने से पहले, व्हाट वी क्रिएट इन आवर माइंड, it is a basic response pattern which is set in all of us. You cannot say that, you know, Amitabh Bachchan is so used to the stage performances or enactment or, you know, dialogue delivery or facing the camera or, you know, conducting Karodpati, so he's so, you know, well versed with it. Well versed hai, but tayari unko bhi chahiye. It is not that suddenly you give him the script and the next day he's come fully prepared. No, he does lot of rehearsals before entering the stage, before, you know, delivering the lectures. That we have been knowing. His interviews come कि वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितने भी बड़े एक्टर हो, कितने भी बड़े सर्जन हो, तैयारी सबको चाहिए होती है, सब, everyone and all, because sometimes the unknown situation, you have not foreseen the situation which will come. तो इवन एक सर्जन भी है, बहुत टॉप के सर्जन है, अगर उनसे भी आपको लगता है कि इनके हाथों होना चाहिए ऑपरेशन, उनको भी तैयारी की जरूरत है, उनको भी अपना पूरा स्टाफ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है. सो एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस बिफोर ही actually starts, and many surgeons pray before doing the surgeries. If you have not heard many interviews, so it is not that they will just suddenly go and start cutting the, you know, skin and then performing the operation, the surgeries. So they need a mental balance. कुछ कुछ की एक दिन में 20-30 सर्जरीज करनी पड़ जाती है, इतना ओवरलोडिंग हो जाता है. हाउ कैन यू डू दैट? ईच केस इज डिफरेंट. सो इतने हाई लेवल पे या इतने अच्छे, इतने एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स भी हो, तब भी उनको तैयारी के बिना इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द स्ट्रेस और हैंडल द सिचुएशन. सो स्ट्रेस अब आता कहाँ से है? सी दिस इमेज. as simple as phone ring can also be cause of your stress. आपको सडनली रात को 12 बजे कोई रिलेटिव कॉल कर रहा है, विल यू बी नॉर्मल? क्या कोई बात नहीं, 12 बजे आ गई कॉल, क्या आपको थोड़ा सा तो लगेगा, ओ माय गॉड, इस वक्त रात के 12 बजे इसका फोन आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है. तो सबसे पहले दिमाग उधर दौड़ता है. एंड देन योर ऑफिशियल स्ट्रेस, टारगेट्स अचीव करने हैं. देन घर में बच्चों का शोर है, दैट कैन ऑल्सो इरिटेट यू. Normal shore is in that's okay, but if there is a ADHD case, or if there is a normally hyperactive child at home who doesn't want to rest in the afternoon, but you need rest, okay, you are packed up with your so many other responsibilities and you have elderly to attend. कितना कुछ हमारा स्ट्रेस का कारण बनते रहते हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के. So this is one of the आधीजा व्याधि, वहां से आया है ये टर्म. ओके, आदि मीन्स, आदि आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, लेट अस नॉट स्पेंड मच टाइम नाउ. आदि मीन्स एम्पलीफाइड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो आधीजा व्याधि में जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस है, दैट इज आधि मीन्स यू आर हैविंग एम्पलीफाइड. बहुत तेजी से आपका दिमाग दौड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट. Whether it is out of my pocket, it is out of my, you know, financial this thing reach, then also you feel कि नहीं, I want it at any cost, I will take it by hook or crook, I need that thing in my life. Okay, it can be any relationship, it can be any material good, it can be any property related need. Okay, वो need नहीं रहती, फिर वो want बनती जाती है. Actually it is not a need. कितनी चीजें तो हमारी वांट्स से रिलेटेड हैं हमारी लाइफ में. नीड तो हमारी अभी कोरोना के टाइम पे ही बता रहा है कि इफ यू आर नॉट परचेजिंग योर फुटवेयर, इफ यू आर नॉट परचेजिंग योर क्लोथिंग्स फॉर 5 months 6 months, you have not gone to market, so that means you needed only these much clothes. You could have done with it without corona also, you could have done with it. कितने सारे कपड़े हमारे अब यूज आ रहे हैं जो शायद हमने डंप किए हुए थे और शायद हमने उसको रीयूज के बारे में सोचा ही नहीं था. So now you are bound to, you know, not go for shopping and not spend over
तो नाउ वी रियलाइज कि जितना था उतने में हमारा अच्छे से काम चल सकता है और चल सकता है आगे भी. ओके, इफ यू आर अ शॉपिहोलिक, पहले पहले आपको बहुत स्ट्रेस आया होगा कि मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकती, मैं तो अपनी फेवरेट शॉप से अपना फुटवेयर भी नहीं खरीद सकती. सम पीपल आर सो यूज्ड टू changing their footwear every month, changing their clothes wardrobe every 3 months. They'll just throw off their things, or either they will donate their things. Better way to use the clothes. Either they will donate, but they want new, new, new and new. अब तो बिल्कुल एक पॉज बटन दब गया कोरोना के टाइम पे. तो अभी कोई भी कहीं भी बाहर से, अब ऑनलाइन शॉपिंग है तो थोड़ा बहुत आप फिर भी स्पेंड आप उस तरफ से कर सकते हैं, बट दोज आर शॉपिहोलिक्स और उनको पहले पहले तो बहुत दिक्कत आई होगी. मेंटली दे वोंट बी रेडी फॉर सच सिचुएशन which they had never imagined in life कि मैं बाहर निकल के मैं एक राउंड भी नहीं लगा सकती. I cannot. राउंड लगाना means something you have to get. Okay, you have to spend. बस एक वो mental satisfaction हो जाती है spending की कि yes you have purchased something new. Okay, so that can be cause of stress. So demanding situations outside भी होती हैं और घर के अंदर भी होती हैं. ऑफिस में भी हैं, फैमिली में हो सकती हैं, फाइनेंशियल कैलेमिटीज हो सकती हैं लाइफ में, ऊपर नीचे जा सकता है आपका बैंक बैलेंस. So then also these stresses can create a imbalance at your mental level. So this also we dealt with पिछली कुछ दिन पहले. I think I dealt with this slide also related to your stress. तो stress अगर हमारा मानसिक चरण पर आता है, साइकिक फेज में आता है, अगर आप उसे कंट्रोल कर लें तो ये आगे नहीं बढ़ता. पर अगर ये अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस है कि आपने चिंता अगर ले लिया किसी चीज की, तो वो कोई उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं उससे, तो वो मनोदैहिक, अब वो साइकोसोमैटिक फेज में आ चुका है. यानी कि आपको बॉडीली कुछ ना कुछ परेशानी दे रहा है. सिर दर्द हो रही है, स्टमक अपसेट है, कुछ लोगों को लूज मोशंस लग जाती है. कोई भी अगर वो घर की कुछ इमरजेंसी सुनते हैं कि उसको ले गए, उसको एकदम से ऑपरेशन कराना पड़ गया, या उसकी आई साइट एकदम लो हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया, कोई अनकॉन्शियस हो गया, कितने सारे ऐसे हम न्यूज सुन सकते हैं. डिस्टेंट रिलेटिव ही क्यों ना हो, तो आपको सुनते ही आपका स्टमक अपसेट हो जाना, या आपको सिर दर्द हो जाना, या आपका भी बीपी लो हो जाना. ओके, so that is psychosomatic phase. Then comes somatic and then come organic phase. तो somatic मतलब और थोड़ा और गहरी बात हो गई आपके कि अब आपका बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, एक बार बढ़ क्या गया, अब वो वापस नहीं आ पा रहा है. And then organic phase means with the BP you have damaged your one or the other organs. It can be kidneys, it can be eyes, it can be pancreas, it can be diabetes along with your BP now. ओके, तो ऑर्गन पे आपके असर होना शुरू हो जाना स्ट्रेस का, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस का. तो ना योगिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टाइल ऑफ एक्सेसेस आइदर ईटिंग. आपने फ्रेज तो सुना होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. ओके, कोई भी चीज का एक्सेस फॉर्म में लेना, चाहे वो आपकी इंटरेस्ट की चीज ही क्यों ना हो. आप एक गुलाब जामुन लेंगे कि आप 10 गुलाब जामुन लेके भी आपको वही टेस्ट आने वाला है. और माइंड इट विद द फर्स्ट इनटेक ऑफ दैट फर्स्ट गुलाब जामुन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद आपको लगेगा अब ये ओवरडोज होती जा रही है. नाउ आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर. इट इज जस्ट लाइक दैट आई एम क्रैकिंग अ जोक. ठीक है, और वही जोक मैं आपको हर क्लास में सुना देती हूँ, और आप जो 10th डे पे, फर्स्ट डे पे मैंने वही चीज सुनाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे आपको लगेगा ये मैम, मतलब मैम को पता है ना कि ये सेम ऑडियंस है, बार बार हमें को वही चीज सुना रही है. फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ डे पे इट विल बी सो मोनोटोनस, और जब मैं 10th डे पे वही चीज सुनाऊं तो आप लिटरली म्यूट ही कर देंगे. आई डोंट वांट टू हियर इट 10th टाइम नाउ, आई कैन नॉट लाफ. ओके, ये वही चीज है, आप एक चीज का ओवरडोज जब कर देंगे तो जोक भी आपको प्लेजर ना दे के पेन ही देगा. ओके, आपको गुलाब जामुन का पहला जो है निवाला, वो आपको प्लेजेंटनेस देता है. तो यही हैप्पीनेस आप 10th टाइम अगर आप 10वीं बार गुलाब जामुन एक ही सिटिंग में खा रहे हैं, तो वो आपको स्टमक अपसेट ही करेगा और आपको पेन ही देगा, और कुछ नहीं कर सकता वो, बिकॉज यू हैव टेकन इट इन एक्सेस मोर देन द रिक्वायर्ड. ओके, बिकॉज टेस्ट इज सेम, टेस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी मोर. उन्हीं हाथों से बना है वो चीज, और आप बार बार ले रहे हैं, तो आपके स्टमक की ओवरलोडिंग है, शुगर की ओवरलोडिंग.
Then the erratic lifestyle of excesses either in eating and drinking habits, excessive indulgences in any form of pleasures of life, work, sleep, चाहे वो काम है, ओवरवर्क करेंगे तब भी बुरा है, ओवर स्लीप करेंगे, कुछ लोग बहुत लेजी हैं, शाम को चाहे 10 बजे भी सो जाए तब भी उन्होंने 10 बजे ही सुबह बिस्तर छोड़ना है, उससे पहले दे विल फील कोई काम का तो है नहीं, क्या फायदा जल्दी उठने का. They'll just find excuse, and excuses are merely escapism from the routine course or escapism from your normal course of routine. और वो काफी डिसिप्लिन्ड तरीका होता है जीने का, but they are okay with it. I mean, once they themselves realize कि कुछ अनुशासन भी कोई चीज है लाइफ में, या बाकी लोग आपकी ब्रेकफास्ट की वेट करते रहते हैं और आप 10 बजे उठेंगे, 12 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे आएंगे, तो बाकियों का क्या कसूर है, right? So once they should be convinced and politely counseled that this behavior is not acceptable, so you have to go, some coordination is required, some adjustment is required in life. चलिए, begins in मनोमय कोश. ये जो है indulgences है हमारी excessive intake की, खाने की हो, चाहे लाइफ के pleasures की हो, बहुत ज्यादा traveling हो, work की हो, sleep की हो, that begins at मनोमय कोश. Thus, the seed of stress is in the Manomaya Kosha, that is stressful experience that we all experience as stress is an emotional state which could be triggered by different factors in different persons. So, factors can be different. Some people can be, triggered by the sight of a tiger, and some people can be triggered by the sight of a snake. जितना डर आपको snake देख के लगता है, शायद उतना डर आपको lizard देख के नहीं लगेगा. जितना डर आपको कॉकरोच देख के लगता है, शायद उतना डर आपको एक छोटा सा अर्थवर्म देख के नहीं लगेगा. ओके, सो दे आर डिफरेंट, द स्ट्रेसर्स आर डिफरेंट एंड योर रिएक्शंस आर आल्सो डिफरेंट टू एंड योर द पर्सन. सेम फैमिली पर्सन अगर ट्विन्स भी हैं तो एक को ज्यादा डर किसी और ऑब्जेक्ट का होगा और दूसरे को ज्यादा डर किसी और ऑब्जेक्ट से होगा. ओके, सो सेम स्टिमुलाई कैन नॉट ट्रिगर similar kind of stress pattern in 5 different people. So 5 different या 6 different. अब आपका ग्रुप अगर 10 का है तो मैं 10 के 10 को अगर इनके सामने अगर एक स्नेक आ जाए तो आपके अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं. Some people would feel कि मैं किसी के पीछे छुप जाऊं तो पहले उसको ही नजर आए, मैं उसको नजर ना आऊं. दूसरे तीसरे का ये रिएक्शन हो सकता है कि मैं ढूंढूंगा विंडो कहाँ से इसको भगाना है. That is a solution oriented brain. That you are finding ways that wild animal should not harm you and others, so you are finding a stick or something के ये दूर भाग जाए या बाहर भाग जाए. और most of the people will escape from that situation. They will try to find out ways कि हम बाहर निकल जाए कहीं से, इसके पकड़ में ना आए, या मतलब हम तो मैनेज कर नहीं पाएंगे स्नेक को पकड़ना और बाहर डालना, so let me fly from the situation. तो वहां पे वही बंदा टिकेगा वो जो ब्रेव हो, करेजियस हो और जो हेल्पिंग हो. ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में ना सोच के बाकियों का थोड़ा सोचे, चाहे एक ही रह जाए वो अंदर, बट ही विल बी बोल्ड इनफ टू टेक दैट स्नेक अवे so that it cannot harm any other person or any human being entering that room. So there are different ways to handle the stress, and different people's approaches are also different to handle the same stress. So the sages say that it is less useful to discuss what caused the stress. अब जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, sages हैं, ठीक है, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, वो उन्होंने जो किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो स्ट्रेस के कॉज को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके इस पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम आपके माइंड का करें क्या. आपने स्ट्रेस को लिया हुआ है, तनाव आपको घर ना कर जाए, तो इसका कारण ना सोच के कि कारण क्या था, कहाँ से आया, किसी की डेथ हो गई, ओके हो गई, ठीक है, सो नाउ व्हाट अबाउट यू, व्हाई आर यू टेकिंग इट टू योर माइंड सो दैट योर द होल बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है, सो दिस इज मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कि नाउ व्हाट इज हैपेंड, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू वीप फॉर दैट एंड वीप फॉर आवर्स एंड आवर्स, और आर यू गोइंग टू कम आउट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस एंड एक्ट with wisdom. So once again we'll read this line. The sages say that it is less useful to discuss what caused the stress. तनाव का कारण ढूंढने से अच्छा है, या कारण जानना
लेस इंपॉर्टेंस रखता है देन टू नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड. अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ये वेग में आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्पीडीली चल रही है, स्पीडेड अप स्टेट ऑफ माइंड है. तो उसको पहचानो. जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि कॉज आपके अंदर है, आपकी बॉडीली जो बीमारियां आ रही हैं आपको, कॉज आप हो, कॉज वो एक्सीडेंट नहीं था, कॉज वो डेथ नहीं थी, कॉज वो किसी का अनयूजुअल सिचुएशन नहीं थी, कॉज वो आपकी फ्लाइट छूटना नहीं थी, कॉज वो आपकी सर्जरी होना नहीं थी. आपके मन में जो आपने स्ट्रेस को वो कर लिया है, हावी कर लिया है, दैट इज द रीजन. ओके, व्हाई यू आर फेसिंग. अगेन इट हैज गॉन. once again I'll share. Hope you are understanding and you are with me. So we'll take the questions later on. Yeah. चलिए next slide. Now mechanisms of Adija Vyadhi. अब यहाँ पे we have been pointed out by the sages that don't think much about the कारण. कारण हो गया, cause हो गया, अब आप mental speed को थोड़ा सा control करें. वो कैसे होगा? What is the mechanism of Adija Vyadhi? The problem of long standing stresses begins at Manome Kosh. This we have understood, and manifests initially only as psychological problems such as irritability, emotional liability, excessive smoking. इमोशनल लाइबिलिटी की एक सिंपल एग्जांपल है जब हम बोलते हैं कि वो मेरे पास तो कोई कंधा भी नहीं है रोने के लिए. मतलब आप इतना वीक फील कर रहे हैं कि यू नीड अ पर्सन यू नो टू जस्ट लाई योर शोल्डर ऑन हिज शोल्डर और योर लाई ऑन हेड योर हेड ऑन हिज हेड. मतलब कुछ तो आपको सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होना चाहिए आपका दुखड़ा बताने के लिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. हम घरों में बहुत एग्जांपल्स देखते हैं. Those who are emotionally weak, they will just find people to let out. Actually, being expressive is good. Okay, it is good that the person is not suppressive of his emotions, he is expressing it. But expressing kitna? Ab aap you are big enough, you are strong enough, you should be strong enough to handle your own emotions and come out of your emotions, rather than finding shoulders and finding people maybe of your lesser age. You can be 40 and the person whom you are finding for support can be 35. तो वो 35 वाला शायद ज्यादा वाइज होगा अपनी लाइफ में. अगर आप सोचते हैं कि आप तो अपने आप को हैंडल कर नहीं पाते हो, you need some people around and you need some, it can be your kid also who can be mature enough. आपसे ज्यादा maturity दिखा सकते हैं आपके बच्चे भी. And that's nothing wrong and that is good only if they are maturing wisely and if they are behaving maturely. So when we find people around us to get to pull us out of that situation, then you yourself are emotionally having weak feelings or you're not strong enough to handle your life. Then excessive smoking or alcohol, you're already dependent on these addictions in life. Then sleep disturbances, difficulty in making decisions. Over the years, this starts disturbing the pranamaya kosha and show up as any one of the digestive problems such as poor appetite, dyspepsia, constipation, flatulence, gastritis, name and you can have it. इतनी सारी digestion related problems हैं, right from acidity, constipation, flatulence, बहुत ज़्यादा गैस बनना, बहुत ज़्यादा एसिड बनना, एसिड रिफ्लक्स होना, ओके, बहुत ज़्यादा डकार आते रहना, बहुत ज्यादा हेडेक्स होना. अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग आप हंगर पैंग्स को रोकते हैं, ठीक है, तब आपकी हेडेक चढ़ जाती है, तो मतलब वात प्रकोप है आप में. वैसी सिचुएशन आना, विच आर कॉमन प्रिकर्सर्स ऑफ मोस्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड एलिमेंट्स. ये सारी जो बीमारियां हैं ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस के कारण आई हैं, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तब आपका कोई ना कोई ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकता है. As this goes on for more years, it shows up at the Annamaya Kosh as unexplained musculoskeletal pains, either as muscle spasms, soft tissue pains, sprains, cramps, inflammations. A combination of some of these imbalances settle down in one particular part of your body, showing up as recurrent episodes of acute or chronic pains with no organically detectable cause. कोई आपको जैसे आप बोलते हैं कि हमारे पेशेंट ने MRI तक करा लिया है,
करा लिया है बट उनका कॉज ही नहीं दिख रहा है, उनकी कोई कारण ही नहीं दिख रहा है कि उनकी क्यों टांगे इतनी स्टिफ रहती हैं, क्यों उनको बोन्स की इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी पेन क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड रीजंस बनते हैं कभी कभी। ओके, और ऑर्गेनिकली यू विल नेवर कम टू नो व्हाट इज द कारण, व्हाट इज द कॉज। सो ऐसे केसेस में जो इडियोपैथिक रह जाते हैं, जिनका कॉज अननोन रह जाता है, वैसे केसेस में इट इज क्वाइट पॉसिबल 99% केसेस में आप दिमागी तौर पे शायद स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज्यादा तनाव में चल रहे हैं, काफी सालों से तनाव में हैं और किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं अपना तनाव, इसीलिए वो बाहर भी नहीं निकल रहा है और बॉडीली वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता जा रहा है। Then an estimated 80 to 90% of visits to the doctor are stress related, but only less than 3% of the doctors talk to the patients about how to reduce the stress. So 3% जो टोटल डॉक्टर पॉपुलेशन है, 3% ही होंगे जो ज्यादा सेंसिटिव होंगे पेशेंट के प्रति और उनको काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग देना चाह रहे होंगे कि अब टेस्ट तो सारे हो गए, डायग्नोज कुछ नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब कोई चिंता है जो दिमाग में चल रही है, जो बॉडीली नहीं नजर आ रही है, अन्नमय कोश में इतनी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, बट फिर भी उनको पेन्स आती है, फिर भी उनको उनकी चाल में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, फिर भी उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। ओके, so only 3% of the doctors realize to talk to the patients about how to reduce their tanav or stress. Then in a national survey, over 85% of people who did yoga reported that it helped them relieve the stress. Exercise is a very useful way to relieve stress, but अब yoga how it is different. Exercise एक अच्छी form है अपने आप को stress से बाहर लाने की. We all know this. Dance is a very nice form to reduce the stress. Music is a very nice form to reduce your stress. Listening to pleasant music, listening to your favorite singer. कभी कभी हम सोचते कि नहीं, हम आज हम ये गजल सुनेंगे, या आज हम इस सिंगर का भजन सुनेंगे, या फिर हम आज हम इसकी संतूर सुनेंगे, या एक इसका सितार वादक है, बहुत पॉपुलर गिटारिस्ट हैं, उनका सुनेंगे. So some of our favorites, we get tuned to it, and when we listen to them, our stress gets relieved. But how yoga is different from exercise or such hobbies, yoga is different from running marathon and or weightlifting. It powerfully combines both physical fitness with an underlying philosophy of self-compassion and awareness. One of the main concepts in yoga is being non-judgmental towards yourself and others. एक बार सपोज आपने जिम रूटीन फॉलो किया, आपने एक्सरसाइज करी है, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, जिम के साथ साथ हम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, थाइज की टोनिंग होनी चाहिए, काफ मसल्स की टोनिंग होनी, इस रेस में आ जाते हैं हम कि उसकी ऐसे है तो मेरी भी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए. सो देन यू ओवर वर्क विद योर सेल्फ, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था. आपने जिम इसलिए ज्वाइन किया था कि आपकी फिटनेस हो सके और आप स्ट्रेस से बाहर आ सके. अब वो आपके लिए रेस बनता जा रहा है, अब वो आपके लिए मैटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनता जा रहा है. आपको रोज के रोज जाना है और उन्हीं लोगों से मिलना है और फिर अपने आप को कंपेयर करना है उनकी बॉडीज के साथ, which is not at all the aim of yoga. In yoga, you are straight away being non-judgmental towards yourself also and others also. Non-judgmental मतलब बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि मेरी पहले बॉडी कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ. See the bigger picture, see the bigger purpose why you have joined yoga. So the normal therapy participants जो होते हैं, या नॉर्मल आपके जो क्लाइंट्स होंगे, या आपके पास जो सीखने वाले होंगे, वो यही सोचेंगे कि अच्छा मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, ओके मेरा एस्थमा क्योर हो गया, ओके मेरा माइग्रेन बिल्कुल चला गया है, 4 महीने से मैं लगातार कर रही हूँ, मेरा आर्थराइटिस के सिम्टम्स बहुत घट गए हैं. So these are the initial symptoms and their body is feeling lighter. But you should tell them कि ये तो बिल्कुल एक छोटा सा नेल था योग का. योग तो एक बड़ा छतरी की तरह है, उसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है. अगर आपको और जानना है तो आप इसमें बने रहें, करते रहें रोज के रोज, एंड लर्न न्यू टेक्निक्स एंड गो फर्दर इन अष्टांग योग. आप आसन सीखें, आपने प्राणायाम सीखे, अब आगे फर्दर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ में उनका ध्यान लेके जाना है, if they are interested, of course. So yoga is being non-judgmental toward yourself and others, which is a powerful tool for stress relief, since much of our stress comes from us being hard on ourselves or frustrated with
others. तो stress को relieve करने का yoga एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है. Then a fundamental principle of yoga is that your body and mind are one and connected. Many of us live primarily either in our mind or our body. For example, people with more calculative brains, बहुत ज़्यादा logical brains हैं उनके, और analytical careers हैं उनके, ग्राफ्स बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा growth oriented हैं, तो उनका क्या कैलकुलेटिव ब्रेन या उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा चलेगा और मेंटल वर्क ज्यादा होगा उनकी लाइफ में, rather than they realize कि उनकी फिजिकल वर्क भी उनको चाहिए, बॉडीली भी they need exercise, okay, and may not realize how much tension is stored in their body. एक ही जगह पे बैठ के उनका मेंटल वर्क, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत ज्यादा ब्रेनी काम है उनका, they are not exerting much on their physical level, so धीरे धीरे postural changes आनी शुरू हो जाएंगी. So, and on the other hand, if you are a hardcore athlete, if you are training yourself for Olympics or some Commonwealth Games, Asian Games, okay, some tournaments coming in future, you may be keenly aware of your body. आपको body का एक सब कुछ पता है कि मेरे को कौन से muscles को कितना exert करना है, but you are quite away from giving some exercise to your brain, to your mental status, to your mind to be at peace. तो आप हमेशा ही उस रेस में लगे हैं कि मैं आगे निकल लूं और मेरा इतना मेरा बॉडी की शेप आ जाए, ठीक है, ज्यादा फिजिकल ओरिएंटेड, ज्यादा अन्नमय कोश पे ध्यान है और मनोमय कोश इग्नोर हुआ है बहुत सालों से. So yoga helps you to balance and tone the connection between your body and mind. And yoga also trains the counter stress response systems called the parasympathetic nervous system. I already told you, जब आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल होती है तो सिंपैथेटिक टोन हाई होती है, और जब आपकी बॉडी रेस्टफुल होती है या फिर नॉर्मलसी पे आ रही होती है तो पैरासिम्पैथेटिक शुड टेक ओवर. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ओवर पावर कर गया सिंपैथेटिक के, तो दैट मीन्स योर फंक्शंस आर बिकमिंग नॉर्मल. जो हार्ट रेट एकदम इंक्रीज हुआ था, जो स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हुआ था कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, एक बार आपकी इंटरव्यू हो गई, एक बार आपकी स्टेज परफॉर्मेंस हो गई, एक बार आपका ये बहुत बड़ा एग्जाम था लाइफ का, वो क्लियर हो गया, सबसे बड़ा इवेंट है जो आपका, कभी आपको लगे कि ये बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का, वो खत्म हो गया, तो आपको नॉर्मलसी आ जानी चाहिए. तो दैट इज टेकन केयर बाय पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन नाउ. ओके, सो हाउ कैन you integrate yoga into your daily life to get rid of the stress? सबसे बड़ा टूल है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए. आसन तो है ही है, खैर, तो आसन के साथ साथ ब्रेथ पे ध्यान देना. ब्रेथ इज द की टू कनेक्ट विद योर बॉडी and in turn it turns down the stress levels also. So use your breath, use wisely. Wise use करना चाहिए breath का, inhalation and exhalation both. So one famous shloka from Hatha Yoga Pradipika 2.2, that is second chapter, second shlok, talks about our breath, very much related to our mind. It is a bridge actually between body and mind. तो breath क्या करता है और breath का रोल फिर mind पे क्या असर होता है उसका. It's a very famous and very popular and everybody should memorize it. सबको learn हो जाना चाहिए ये. चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत्. So this is the second shloka in second chapter of Hatha Yoga Pradipika, written by Swami Swatmaram. Then when the breath wanders, what does it convey? इसका मतलब क्या है? चले वाते चले चित्तम, चलन चित्तम नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्. So when the breath wanders or is irregular, the mind is also unsteady. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई ना कोई आप में से शायद चाय पी रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई आप में से अभी खाना खा रहे होंगे, because all the videos are not on and I'm not there to monitor everybody. All are grown-ups, all are responsible enough to listen to the teacher carefully. It may not be only me, कोई भी lesson चल रहा हो, कोई भी आपका tutorial चल रहा हो, तो you need to give attention to it, and because your future lies in what you are learning today. और अगर आपने ध्यान से सुनी होंगी बातें, ध्यान से अपने lessons
रिवाइज किए होंगे तो आपको आगे के चैप्टर्स भी काफी इजी लगेंगे और समझ में आएगा, और जहां जहां डाउट है आप पूछेंगे भी. सो इफ यू आर अटेंटिव इनफ, सो व्हेन द ब्रेथ वैंडर्स, जब आपकी ब्रेथ घूम रही है इधर उधर, इधर उधर मतलब अंदर जा रही है बाहर जा रही है, व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियसली कंट्रोलिंग इट, when you are not holding your breath or consciously retaining your breath, so it is irregular, it has to be irregular. Okay, mind is also unsteady. अब आपका दिमाग कहीं ना कहीं जा सकता है. सपोज मैंने अभी अगर मैं ताजमहल की बात करती हूँ, आगरा में है, एकदम से आपका माइंड उधर चला जाएगा. ठीक है, देन सम पीपल मे बी वंडरिंग इन ताजमहल ओनली, और मेरा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और वो वहीं पे होंगे. हम उस साल गए थे, हम उस साल गए थे, बहुत मजा आया था, फिर हमने ये खरीदा था, हम यहाँ बैठे थे, कौन कौन थे हमारे साथ, ऐसे ऐसे कितने थॉट्स आप लेके आ जाएंगे just at the word of Taj Mahal. Okay, and some good students will be immediately come back to the lesson which the teacher is trying to convey, or the lesson is going on, उस पे दोबारा से ध्यान दे देते. So when your breath is wandering, मतलब आपके breath ऊपर नीचे चलता जा रहा है, तो आपको माइंड का भी कोई कंट्रोल नहीं है, माइंड आपका अनस्टेडी है. अब सेकेंड लाइन देखेंगे, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्, बट व्हेन द ब्रेथ इज स्टिल, जैसे ही आप ब्रेथ पे कंट्रोल डालते हैं, ठीक है, स्थाणुत्वमाप्नोति, एकदम से ब्रेथ को रोक देते हैं, तो माइंड का क्या बनेगा. अब कुछ सेकंड्स के लिए तो आप रोक देंगे, तब आप सोच सकते हैं ताजमहल बोला था मैम ने कुछ सेकंड पहले, कौन थे हमारे साथ, क्या खाया था वहां पे बैठ के, कहाँ थे. तो अगर मैंने आपको बोलना कि आप एकदम से अभी आप अपनी ब्रेथ रोक ले, बस 20 सेकंड के लिए रोक ले, तो 20 सेकंड तो आपको बहुत पहाड़ लगेगा. अरे बाप रे, 20 सेकंड, हाउ कैन आई होल्ड माई ब्रेथ, आई हैव टू लिव लॉन्ग भाई, आई कैन नॉट होल्ड 20 सेकंड्स. मैम 10 सेकंड इज ओके, डोंट टेल अस टू होल्ड इट टिल 20. तो 20 कुछ लोगों को बहुत लंबा लगेगा कि अब मतलब अब तो बस बोल दे मैम. 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 14, 15 आते आते आपको लगेगा बस अब नहीं, और नहीं हो पा रहा है. सो माइंड कहाँ गया फिर. नो ताजमहल, नो दूध, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नथिंग, नॉट इवन योर इमीडिएट हाथ पांव, ओनली योर हार्ट, ओनली योर ब्रेथ, द नेक्स्ट मोमेंट. बस अब मैम जब रिलैक्स बोलेंगी तो आई विल टेक अ डीप ब्रीथ, फिर ऐसे लेते हैं. जब मैं बोलूंगी रिलैक्स, फिर आप लंबी सांस लेंगे कि ओ थैंक गॉड दिस रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इज ओवर नाउ. ओके, सो होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ brings back our mind to the present second, present, इस वक्त, the present moment. If you want to realize, just hold your breath and feel the moment. ठीक है, जो मोमेंट, तो जो एक एक मोमेंट तो हिस्ट्री होती जा रही है, वी ऑल नो, विद ईच सेकेंड, विद ईच पल्स, विद ईच माय वर्ड्स, आई एम क्रिएटिंग अ हिस्ट्री फॉर माई सेल्फ, हिस्ट्री फॉर यू, हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस. कि यस, पिछले हफ्ते हम इस वक्त ये लेसन ले रहे थे. ओके, दैट इज अ हिस्ट्री. सो नाउ एक एक क्षण जो जाता जा रहा है, अगर एक एक क्षण को आपको वाकई में प्रेजेंट में रहना है, तो ब्रेथ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्. सो जैसे ही आपकी ब्रेथ आप रोकते हैं, वायु का निरोध करते हैं, वैसे ही आपका जो मन है, ठीक है, ऐसे ही योगी सीख जाते हैं लंबा जीना. जैसे वो ब्रेथ का कंट्रोल सीखते हैं, वैसे ही वो अपनी जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो भी लॉन्ग करते जाते हैं. वो जीते हैं, इस मोमेंट पे जीते हैं, और फिर ज्यादा पास्ट और फ्यूचर का कुछ ध्यान नहीं रखते. ओके, सो स्ट्रेस इज एक्चुअली either you are thinking in the past, or either you are in the past or you are in the future. बहुत कम स्ट्रेस होते हैं जो हम एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे फील कर रहे हैं. तो प्रेजेंट इज स्टिल इट्स गोइंग ऑन एंड इट इज बिकमिंग हिस्ट्री. तो प्रेजेंट को लेके जिए. कुछ घंटे पहले कुछ घटना घटी, दैट्स ओके. नाउ फाइंड द सॉल्यूशन, कम आउट ऑफ इट एंड गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ. ओके, सो यू कैन नॉट बी स्ट्रेस फॉर अदर्स ऑल्सो. आप बाहर नहीं आ पा रहे अपने स्ट्रेस से, तो आप बाकियों के लिए स्ट्रेस बन गए हैं, है ना, वो भी नहीं होना चाहिए. So stress response, a small but intriguing study done at the University of Utah
provided some insights into the effect of yoga on the stress response by looking at the participants. एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ उता में, जहाँ पे 3 कैटेगरीज के लोग थे, मतलब 3 पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया था, 3 सेट बना दिए थे पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन इन द सेंस जो सब्जेक्ट्स लेते हैं हम स्टडी के लिए. The researchers noted that people who have poorly regulated response to stress are also more sensitive to pain. तो उन्होंने रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस और पेन का रिलेशन देखना चाहा. जो लोग स्ट्रेसफुल हैं वो पेन को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं या कैसे? तो रिलेशन क्या सामने आया? सो 12 बंदे थे योगा प्रैक्टिशनर्स, 14 बंदे थे फाइब्रोमायल्जिया, दोज आर वेरी वेरी सेंसिटिव. स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस होती है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन. तो फाइब्रोमायल्जिया मतलब उनको टच करने पे भी पेन की सेंसेशन आती है, बहुत सेंसिटिव लोग. ओके, एंड 16 हेल्दी वॉलंटियर्स. So when the 3 groups were subject to more or less painful thumbnail pressure, the participants with fibromyalgia वालों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? They perceived pain at lower pressure levels. बहुत ही कम प्रेशर डाला था उनकी स्किन पे, तो compared with other subjects तब भी उनको पेन परसीव हुई. ओके, तब भी उनको पेनफुल लगा लोअर प्रेशर पे भी. द फंक्शनल MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा. So all the participants underwent this test, and what happened? जो fibromyalgia के patients थे, so such that population functional MRIs showed that they had greatest activity in areas of the brain associated with the pain response. जैसे ही उनको हल्का सा भी प्रेशर गया तो ब्रेन की जो पेन रिस्पॉन्सेज हैं वो इतने एक्टिव हो गए, ग्रेटेस्ट एक्टिविटी देखी गई कि ब्रेन में कितनी हलचल पैदा हो गई उनके लोअर प्रेशर से. एंड देन योगा प्रैक्टिशनर्स, ये कंपेयर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि योगा प्रैक्टिशनर्स को क्या किया, हैड द हाईएस्ट पेन टॉलरेंस एंड लोएस्ट पेन रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द MRI. उनको भी सेम प्रेशर दिया गया, बट दे फेल्ट वेरी वेरी यस. Let me complete this. If you have queries, you can ask later on. Had the highest pain tolerance and lowest pain related brain activity during the MRI. Hence, yoga techniques help a person regulate their stress and therefore pain responses. So ऐसे योगा प्रैक्टिशनर को पेन भी कम फील हुई और ब्रेन की जो एक्टिविटी है लोएस्ट रही उनकी एज कंपेयर टू द सेंसिटिव पीपल हु हैव lot of brain activity involved when they have lowest pressure also on their skin. तो ये एक comparison study थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ उता के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने करी थी. So what is hormonal imbalance? Next topic is about hormonal imbalance. तो आपको पता ही है अब एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा जो कि हार्मोन सिक्रीट करता जा रहा है, but it is a very smart system also. Because when you need thyroid, your body will need it, and your pituitary या hypothalamus will tell कि अब pituitary जाके ये secreting हार्मोन secrete करो, और फिर thyroid को पता लगे कि thyroid को thyroxine secrete करनी है, T3 T4 secrete करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर parathyroid भी है, उसको भी stimulation दे के आओ. So everything very very smartly monitored, smartly organized, from hypothalamus to pituitary and then to the entire endocrine system of the body. So mainly आज हम हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के बात करेंगे. वैसे 2 तरह के होते हैं सिक्रीशंस हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी होती हैं और एंडोक्राइन से भी होती हैं, बट आज हम एंडोक्राइन को डील करेंगे बिकॉज टाइम डजंट परमिट अस टू दैट विल बी अनदर 1 hour स्टडी अगर हम पूरे ग्लैंड्स को देखें बॉडी के. बट ये सारे मेन ग्लैंड्स हैं. जैसे हम ब्रेन में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को लेके चले, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है गले में, पैराथायराइड इज आल्सो इन द नेक, थाइमस एट मिडल ऑफ योर चेस्ट, एड्रीनल्स ओवर योर किडनीज, देन पैनक्रियाज एक अपने आप में एक अच्छा बड़ा ग्लैंड है, लिवर के एडजेसेंट प्लेस्ड है लेफ्ट साइड पे, स्टमक के एकदम पास, देन ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स. सो इनके अलग अलग सिक्रीशंस हैं जो कि डक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हो जाती हैं आपकी बॉडी में, और बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं ताकि सारी बॉडी आपकी सिंक में चले.
So now hormones are your body's chemical messengers produced in the endocrine glands. These powerful chemicals travel around your bloodstream, telling the tissues and organs what to do, how to behave. कितने तेजी से काम करना है, कितने स्लो काम करना है, और कितने आपको अंदर की even emotions are also very well governed by some of our hormones, जैसे कि एड्रेनलिन है. एड्रेनलिन हार्मोन आपकी सारे सिस्टम को तेज गति देता है, फटाफट इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, मसल्स में एकदम पावर डाल देगा, जान डाल देगा, क्योंकि आपको उस वक्त सेंस हो रहा है कि आपको जल्दी भाग के, सपोज यू हैव टू रीच समवेयर, भाग के आपको किसी को पकड़ना है, किसी की फॉल हुई है, आप सड़क पे हैं, कोई आसपास नहीं है, तो दैट एल्डरली पर्सन हैज जस्ट फॉलन और उनके हाथ में स्टिक भी थी, फिर भी आपको दूर से दिख रहा है कि नहीं नहीं वो संभल नहीं पा रहे हैं, आप दौड़ के भागना चाहते हैं, तो immediately adrenaline will shoot up in your system and you may be taking 50 steps running to reach that person and to help that person to get up. Okay, तो आपको कभी कभी इमरजेंसी में ऐसी काम करने पड़ जाते हैं बॉडी से, तो ऐसी सिचुएशंस में केमिकल मैसेंजर्स हमारे जो हार्मोन्स हैं बहुत काम आते हैं. सडनली कुछ चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में. So the endocrine system is a network of glands that produce and release hormones that help control many important bodily functions, including the body's ability to change calories also into energy that powers our cells and organs. तो देखिए मेटाबॉलिज्म, स्पेशली द थायराइड ग्लैंड, इसकी जो सिक्रीशन है ये पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, हमारी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है. ठीक है, हमारा जो कट डाउन चल रहा है, लेवर को कितनी हद तक काम करना है, पैनक्रियास को कितनी हद तक इंसुलिन सिक्रीट करते रहना है, या फिर ग्लूकोकॉर्टिक ये जो है हमारा उसका सोमैटोस्टेटिन एंड ग्लूकागॉन, ये भी पैनक्रियास की सिक्रीशंस है, ये कितनी मात्रा में सिक्रीट होनी चाहिए, और पैनक्रियास को कौन स्टॉप बोलेगा, ओके नाउ स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन, नाउ इनफ, स्टॉप सिक्रीटिंग ग्लूकागॉन, स्टॉप सिक्रीटिंग सोमैटोस्टेटिन, तो ये कौन बोलेगा. ठीक है, ये सारा गवर्न है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सारा कुछ. जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का एक साइकिल चलता है हमारी बॉडी में कि दीज हार्मोन्स इन दीज क्वांटिटीज ओनली शुड बी सिक्रीटेड, तो बहुत स्मार्टली गवर्नड है. ये पूरा साइकिल है हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक अच्छा हैंड टू हैंड, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दे शुड वर्क हैंड इन हैंड for our optimum health. So the endocrine system influences how your heart beats, how your bones and tissues grow. It plays a vital role in whether or not you develop diabetes, thyroid, growth disorders, and a host of other hormonal related issues. So these are the glands situated in our body, and these are the secretions, hormones. Then men and women both may experience any of the following symptoms. तो जो men का है, this is the slide. ऊपर वाली slide को आप delete भी कर सकते हैं, वो एक general slide थी. Then I concentrated on this more. So this is the more appropriate slide, so that you can delete when you get the soft copies or if you want to print it. So symptoms of a hormonal imbalance, the symptoms will depend on which hormones or glands aren't working properly. अब आपके symptoms जो आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से हार्मोन्स पे असर आया है, या कौन से हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट नहीं हुए हैं या ओवर सिक्रीट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं. सो डॉक्टर्स आल्सो विल रिलेट योर सिम्टम्स टू द दिस हार्मोनल सिक्रीशंस इन योर बॉडी, एंड दे विल टेल यू फॉर सम बेसिक टेस्ट्स. अगर पैनक्रियास की दिक्कत है, डायबिटीज की शक आ रहा है डॉक्टर को, तो वो पैनक्रियास की जैसे इंसुलिन की मात्रा कितनी है बॉडी में वो मेजर होगा. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक होता है वो होगा. हाउ एंड योर यूरिन में कितनी मात्रा में आपका ग्लूकोज बहता जा रहा है और बॉडी को काम नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मेजर होगा. सो देयर आर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो ब्लड से रिलेटेड भी हो सकते हैं और दूसरे फिजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं. Then men में testosterone plays an important role in male development. If you aren't producing enough testosterone, it can cause a variety of symptoms. In adult male, symptoms include development of breast tissues, breast tenderness, loss of muscle mass, infertility, decrease in beard and body hair growth, osteoporosis, bones में bones का porous हो जाना, osteoporosis, okay.
द लॉस ऑफ बोन मास, बोन डेंसिटी का लॉस हो जाना, बोन मास का लॉस हो जाना, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन. Whereas in women PCOS या PCOD एक बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है. Right from the puberty you can face this among women, among girls. So puberty, PCOS or PCOD, pregnancy, breastfeeding, menopause, everything governed by your glands and hormones. Sorry. Other than PCOS, symptoms of a hormonal imbalance include heavy or irregular periods, missed periods or frequent periods, hirsutism, that is excessive growth on the face, chin, chest and other parts of the body, acne on the face, chest पे acne हो जाना, pimples हो जाना, और upper back thinning hair or hair loss, then weight gain or troubles in losing weight. ऐसे patients को बहुत जल्दी weight gain की problem भी आ जाती है, especially PCOS. Then symptoms in children. Puberty is the time when boys and girls start producing sex hormones, gonadal hormones. Many children with delayed puberty have a condition called hypogonadism. जिनका delayed रहता है puberty, उनको hypogonadism मतलब आपके gonadals काम नहीं कर रहे हैं या activate नहीं हुए हैं, अभी puberty fully set in नहीं हुई है. ऐसे cases में तो boys को क्या symptoms आते हैं और girls को क्या symptoms आते हैं. They are quite related to whatever we read in men and women earlier. So you all know that this is the basic changes when you come across during your puberty. Now, causes of endocrine disorders. Endocrine disorders are typically grouped into two categories. So endocrine diseases that results when a gland produces too much or too little of endocrine hormone, called a hormone imbalance. Endocrine disease due to development of lesions such as nodules, tumors in the endocrine system, which may or may not affect hormonal levels. So endocrine glands में भी अपने आप में lesions हो सकती हैं, छोटे छोटे ट्यूमर्स या सिस्ट्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिक्रीशन या हार्मोनल इम्बैलेंस तो आ ही सकता है. और ये कम सिक्रीशन हो सकती है या फिर ओवर सिक्रीशन हो सकती है. जैसे हम थायराइड के केस में देखें तो हाइपोथायरॉइडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है. ओके, सो द एंडोक्राइन फीडबैक सिस्टम helps control the balance of hormones in the bloodstream. If your body has too much or too little of a certain hormone, the feedback system signals the proper gland or glands to correct the problem. तो इतना अच्छा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, ऑटोमेटिकली है, ये इनवॉलंटरी है कि आपका नेगेटिव फीडबैक फटाफट चला जाता है कि आपको अभी हार्मोन स्टॉप करने हैं. तो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड सिटिंग इन आवर ब्रेन. इट विल जस्ट स्टॉप द stimulating hormones and then the secretions will get stopped and your glands will not overwork. और जब आपको जरूरत है तो तब ये पिट्यूटरी पॉजिटिव फीडबैक देगा, फटाफट हमें केमिकल मैसेंजर्स जो हार्मोन्स हैं हमारी जल्दी जल्दी वहीं पे जाके बताएंगे कि यस नाउ यू नीड टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स. ओके, सो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सिस्टम चल रहा है बॉडी में. Increased or decreased levels of endocrine hormones may be caused by problem with endocrine feedback system. अगर ये feedback system positive negative ये अगर disturb होता है तो आपको increased decreased levels of hormones secrete होने शुरू हो जाएंगे. कोई ना कोई disease आपको ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपका liver खराब हो गया है या जिसकी वजह से आपके feedback system अच्छा नहीं चल रहा है, पिट्यूटरी तक messages नहीं पहुंच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन फेज में चल रहे हैं, तब भी आपके काफी सिक्रीशंस ब्लॉक हो जाते हैं. मेंटली आपने होल्ड ऑन रख लिया अपनी बॉडी को कि बस अब आपको एक कदम मूव नहीं करना है, because your life is stand still. Suppose you have got a major blow in your life, that can be a financial stress, that can be losing a limb in an accident, that can be as heavy as losing your one of the parent or spouse, or losing your major property, कुछ भी, anything, you're losing a court battle. अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है बहुत सालों से है, तो अगर आप वो हार चुके हैं, हार जाते हैं, तो भी आपको लाइफ स्टैंड स्टिल लगती है. तो हम कहीं ना कहीं हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं कि वो एकदम ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी हार्मोन. सो डिजीज हो गई या फेलियर ऑफ अ ग्लैंड टू स्टिमुलेट अनदर ग्लैंड to release the hormones. For example, a problem with hypothalamus can disrupt hormone production in the pituitary. A genetic disorder such as multiple endocrine neoplasia
in men, or congenital hypothyroidism, infection, injury to endocrine gland. Suppose आपको किसी ने हिट कर दिया साइड से, या आप कहीं फॉल हुई थी आपकी, तो आपके पैनक्रियाज में इंजरी हो गई, उसकी सिक्रीशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है. या फिर पार्शियल आपकी सर्जरी हो गई है जहाँ पे आपको पार्शियली ग्लैंड निकालना पड़ गया है, जैसे लिवर के केस में होता है. लिवर में अगर ट्यूमर्स हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो ठीक ही नहीं हो रही है, सालों साल मेडिसिन लेके देख लिया, अब डॉक्टर विल डिसाइड कि नहीं, सर्जरी के अलावा कोई चांस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है. तो अगर आपका पार्शियल सर्जरी हो गई है, वो थायराइड की भी हो सकती है, किसी न किसी ग्लैंड की हो गई है, तो उसकी भी सिक्रीशंस आधी ही रह जाएंगी फिर बॉडी में. वैसे भी वो काम नहीं कर रहा था पूरी तरह, तो डॉक्टर्स विल हैव अ बेटर डिसीजन कि अब क्या करना चाहिए. तो वो आपकी कंसेंट से वो आधा पोर्शन ग्लैंड का निकाल देते हैं. सो देन व्हाट हैपेंस, ग्लैंड का आधा निकल गया तो सिक्रीशंस भी कम रहेंगी फिर उस ग्लैंड से. Then most endocrine tumors or nodule lumps are non-cancerous. They usually do not spread to other parts of the body. However, a tumor or a nodule on the gland may interfere with the gland's hormonal production. हमेशा नोड्यूल्स सुन के, या लम्प्स हो गए हैं, सिस्ट हो गए हैं, ट्यूमर हो गए हैं सुन के घबराना नहीं चाहिए. ये नॉर्मली नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन होते हैं. पर अगर इनमें बहुत देर से क्रॉनिक हुआ है, आपका सिचुएशन क्रॉनिक चल रही है, और इसके भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, टिश्यू कल्चर होते हैं, अगर उसमें मैलिग्नेंसी आती है तो देन ओनली कंसिडर इट इज लिटिल डेंजरस. बट देन ऑल्सो क्योर आर देयर. ऐसा नहीं है कि कैंसरस है तो उसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है. बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो तो पॉसिबल नहीं होती. अगर एक छोटे से एरिया में कैंसरस ग्रोथ है तो लोग बहुत सालों तक जी सकते हैं आफ्टर यू आर आउट ऑफ इट, if the surgery is done only for that specific area which was malignant. Then yoga for endocrine health, क्या क्या कराना चाहिए आपको? क्रियाज जरूरी करानी चाहिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी. अब देखिए एंडोक्राइन हेल्थ, अब एक एक हार्मोन को लेके आई कुडंट हैव गिवन सिंगल लेक्चर ऑन ओनली पैनक्रियाज और ओनली लिवर और ओनली thyroid. So combining the yoga practices for all the endocrine glands, so we can do all the practices. कुछ भी आप सोचिए बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड हेयर. बस ये ध्यान रखना है कि आर्थराइटिस पेशेंट है तो उनकी टांगों के साथ हमें ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी है, उनको नीचे बिठा के प्रैक्टिसेस नहीं करानी है, चेयर पे करा लीजिए जितना हो सके. क्योंकि बाकी कंडीशंस अगर कॉम्प्लिकेटेड है उनकी, जैसे किसी को माइग्रेन भी है, साइनसाइटिस भी है, ओबेस भी है, ओवरवेट भी है, और डायबिटीज भी है, और हाइपरटेंशन भी है. बिकॉज यू विल नॉट गेट अ केस दैट यू वांट कि मुझे सिर्फ बीपी वाले पेशेंट मिले और कोई ना मिले मेरी लाइफ में, या मुझे सिर्फ शुगर वाले मिले तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो आपके पास कोई भी आ सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी लाइक व्हेन यू नोट डाउन द केस हिस्ट्री, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. It is not that you are targeting only BP patients, or you are targeting only diabetes. If you are a yoga therapist, if you consider yourself a therapist, so anyone can approach you for yoga therapy. So उसके साथ साथ आपको सिर्फ BP ट्रीट ना करते हुए बाकी कंडीशंस भी देखनी है. एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द लिमिट्स ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पेशेंट. तो उतने लिमिट में कराइए जितना वो कर पाए. ओवरलोडिंग नहीं देनी है, ओवरवर्क नहीं कराना, ओवर एक्सर्शन नहीं करानी है उनको. बट जहां पे हमें लगता है जरूरी है 10 राउंड करने हैं तो 10 ही करने हैं, उससे नीचे आपको असर ही नहीं आएगा. ऐसे ऐसे आपको फिर बोलना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, ताकि वो थोड़ा उनका स्टैमिना बिल्डअप हो सके. ठीक है, कुछ लोग नाम से ही घबरा जाते हैं कि ओ ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो, और आपने जैसे करके दिखाया वैसे थोड़ी ना हमारी बॉडी, दे विल से लाइक दैट, जैसे आप करते हैं वैसे थोड़ी ना हम कर पाएंगे, सो आई विल नॉट डू इट. तो वो मेंटली थोड़ा मेंटल ब्लॉक लेके भी आए होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है. पर उतना ही कराइए जितना उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो. सो नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति भी कराइए, मुखधौती, कुंजल, ये सारा एंडोक्राइन को, हमारी हेल्थ को. देखिए अगर हम अपने माथे से लेके पूरा नीचे एंडोक्राइन, यूट्रस, टेस्टोस्टेरोन, अगर वहां तक हमारा हम अगर ध्यान दे, अटेंशन दे, राइट फ्रॉम द ब्रेन अप टिल द गोनाड्स, so you have so many endocrine this glands. Okay,
एंडोक्राइन को स्टिमुलेट करना, मसाज करना, कहाँ कहाँ पे कौन सा ग्लैंड है वहां पे असर डालना आपकी प्रैक्टिस का, वो इम्पोर्टेंट है। और जिस भी ग्लैंड की दिक्कत है पेशेंट को, तो वो वाली प्रैक्टिसेस इंक्लूड करना और बाकी एक्सक्लूड करना, दैट इज completely your call, you have to decide. So hands in and out breathing, hand stretch breathing, dog breathing, tiger breathing भी involve कर सकते हैं इसमें, सेतुबंद breathing भी डाल सकते हैं इसमें, which I have missed I think, हाँ। एंड शिथिलीकरण व्यायाम में भुजबंध शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, आर्म्स रोटेशन, कटी शक्ति विकासक, वक्षस्थल, जो आपको लगता है अच्छा है उस पेशेंट के लिए, हर तरह की प्रैक्टिस दे सकते हैं। सूर्य नमस्कार एटलीस्ट 8 to 10 राउंड, देखिए कराना आपको दो ही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। सम पीपल कैन कम जस्ट फॉर 30 मिनट्स फॉर यू, बस आधा ही घंटा है उनके पास, उतने में आप अगर 10 राउंड सूर्य नमस्कार के करा रहे हैं तो बाकी फिर इग्नोर हो रही हैं प्रैक्टिसेस, बाकी आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप उस दिन जब उनके पास कम टाइम है और आपके पास भी, यू आर ऑल्सो प्रेस्ड फॉर टाइम समटाइम्स, सो यू जस्ट लिमिट योरसेल्फ, 2 या 4 या 6 राउंड ही कराइए सूर्य नमस्कार के। आसन में ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धकटी चक्रासन, पर्वतासन, गौमुखासन, ऑल सिंपल आसन। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका, शीतनी, Brahmari and Nadanusandana, Om meditation. Okay. So now if you have any questions, you can ask. Today was the last day. Even if you have something previous in the previous classes, you can ask. We can stretch the class for 5 or 10 more minutes. If you have some queries, please do ask. Don't leave the class with doubts. Hello, ma'am. Yeah, tell me. Yeah, this is Anita from Mumbai. I have done my QCI certification from Srishti School of Yoga. So my question is, how much Kapalbhati? From where you have done? Sorry. Srishti School of Yoga, Bangalore. Acha, okay, Bangalore. Okay. Yeah, tell me. Yeah. So how many rounds of counts of Kapalbhati we can have? Like I've heard that in one go few teachers teach 100 Kapalbhati, 100 counts in one go, 200 counts in one go. So, okay. What is the limit? Have you seen Ramdev ji is doing? Yeah. He does it for 300, 400, and he is so confident of his practice. कोई नहीं, सब cure हो जाएगा, 100% cure हो जाएगा. He has his own faith and he has cured many cases, no doubt about it. And they have documented it in many big research journals also. So he has his own ways and techniques of teaching people, and it motivates also. Because sometimes what happens, 300 strokes, he says, but the patient who follows, okay, 300 तो नहीं हो पाएगा, चलो कम से कम 200 करके देख लेते हैं. Okay, if I tell you कि आपको PhD करनी है अपनी लाइफ में, and you say, oh my God, कम से कम MSc तो कर ही लूंगी, PhD तक किसने देखा है, let's see, ठीक है. So high target you give to the patients, and many a times it happens कि आप वहां तक ना पहुंच पाके you give a lesser target to your body. Okay, let me do it 200 strokes. So your question was normally कितना acceptable है body, कितना वो कर पाए. So I think 60 स्ट्रोक से स्टार्ट करना चाहिए कपालभाति. ओके, मिनिमम 60 स्ट्रोक से. एंड इफ इट इज अ बीपी पेशेंट आल्सो नो प्रॉब्लम, 30+30 करा दें उनको, और वो कराते जाएं. 1 महीना यू कैन गो अहेड विद दिस, एंड देन यू कैन गो फॉर 200 स्ट्रोक्स इन 2 वीक्स, रीच दैट लेवल, दैट्स इट. उससे ज्यादा इतना वो नहीं है. 300 स्ट्रोक्स भी कराते, बट किसी किसी कंडीशन में इंपॉर्टेंट है 300 भी कराना. ओके, when you are shedding the weight of your lower belly, वहां पे आपको अटैक करना है, मसल्स का फैट कम करना है, then you need to do more time, more number of more rounds of Kapalbhati. 200 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. So accumulation of fat, it depends on the accumulation of fat, the layers of fat which you have accumulated around your belly. क्योंकि Kapalbhati, no doubt it is a respiratory technique, respiratory organs को activate करने की technique है, purification की technique है, but it does affect on the lower belly fat also, lower abdominal fat. So it is good if you can introduce
60 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंचे, कंफर्टेबल लगता है तो 150 तक पहुंचे, उससे भी ज्यादा अगर करना चाह रहे हैं तो 200, दैट्स इट, उतना बहुत रहेगा. अच्छा, जैसे आपने बताया कि वेट लॉस के लिए So 300 but do तक. it in intervals, not in one go. Yeah, I always do it in 3 Intervals rounds. like 60 plus. Yeah. Yeah. For That's belly it. fat, we can add up to 300, no, in periods, like in rounds. 300 is okay for belly देखिए fat. typically if it is a abdominal fat case, pot belly case, तो आप कपालभाति के साथ साथ after you finish कपालभाति, the last stroke of Kapalbhati, suppose you give fully, you release the air through the nose with one go, what we are following. जो last breath of Kapalbhati है, उसके बाद tell them to adopt Udyan Bandh. Okay. So bandhas associated with the kriyas, bandhas associated with asanas, bandhas associated with pranayama will have multifold effect than only doing Kapalbhati. Okay. Because at one point what happens, Kapalbhati, you lose somehow the rhythm somewhere. 100 कर लिए, अब जो second round है वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो जाएगा. Have you observed कि पहले जोश से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे you have slowed down or you are not catching up with the rhythm. So कपालभाति को भी interesting बनाने के लिए और ज्यादा benefit देने के लिए, it must be clubbed with certain bandhas, and what beautiful then club it with Udyan Bandh, especially to reduce the abdominal fat. तो abdominal fat के लिए तो उड़ियान बंद है, अग्निसार है, नौली क्रिया है, and कपालभाति. All four will hold very nice and they will give benefit to attack the muscles of the fat around your lower abdomen and even the post delivery fat. वो भी बहुत एक जिद्दी फैट बन जाता है. I'm not talking about the zero figure which the actresses achieve, because being a yogi you should not aim for flat stomach and बस एकदम से बिल्कुल प्लेन हो जाए आपका स्टमक. It is demoralizing, or it is giving a very you are expecting very less from yoga then. सिर्फ आप अपना फिगर पे ही अगर ध्यान दे रहे हैं, इसके तो और बहुत सारे बिगर पर्पस है ना to do the yoga practice. So let's find ways to be fit, and fitness, obviously fitness is the goal, but not only physical fitness, mental also. And Kapalabhati के बाद जो आप एक trance feel करते हैं mentally after the last stroke of exhalation, ideally you should not feel like breathing more. तो वो जो एक ट्रांस की सिचुएशन आती है, दैट यू टच दैट आनंदमय कोश. आनंदमय कोश तक जब आपकी मेंटल स्टेट पहुंचता है, मनोमय कोश के बाद विज्ञान को भी क्रॉस करके अब आप आनंदमय में पहुंच गए हैं, बिकॉज विज्ञानमय कोश वाज टेलिंग यू कि नहीं 300 स्ट्रोक्स कंप्लीट नहीं हुए, मुझे थोड़ा और करना है, 200 अभी कंप्लीट नहीं हुए, मुझे थोड़ा और करना है. सो यू आर स्टिल इन दोज काउंट्स. अभी लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है. तो जैसे ही आप अप्रोच करते हैं द लास्ट फाइनल ब्रेथ, व्हेन यू एक्सहेल आउट, your mind should reach that stillness of thoughts. That is the bigger aim of doing Kapalbhati than only aiming at flat stomach or zero figure, whatever slangs you give. So abhi this was the aim कि Kapalbhati करिए, but उसका bigger purpose भी देखना चाहिए हमें हर एक टेक्निक का, not only Kapalbhati. Okay, yes, thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Yeah, hello, ma'am. I'm Shobna. Yeah, tell me. Yeah, ma'am, I have a question, to strengthening my wrist, because बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि वो even मर्जरी आसन करते हुए भी लेफ्ट रिस्ट में काफी प्रेशर रहता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू. और इसी कारण से जैसे चक्र आसन या जो रिलेटेड वो उसमें मुश्किल रहती है. तो हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिस्ट? Have you got some injury in your right wrist? No, nothing. Acha. Okay, you're physically, the structure is such that you have thin bones in your wrist. Your wrist is really thin. Yeah. It is strong enough. Yeah, it is quite strong enough. Yeah, then you should not. I don't know how, and no injury as such. Okay.
So keep doing Marjari Asan, keep doing some strengthening practices like Anguli Shakti Vikasak, Manibandha Shakti Vikasak, rotation of the Manibandha, ठीक है? Actually, for the last 2 years, I was as a TIC. I was in Dubai. Fortunately, I got that opportunity. तो उनके साथ मैं used to practice. तो ये सब मैंने काफी किया. Even Surya Namaskar. What I've seen, like if I'm doing 12 Surya Namaskar every day or 10 Surya Namaskar, तो after a month I'm quite good. लेकिन अभी वापस आ गई हूँ. So like again, it's look so continuously I can't do 12 Surya Namaskar every day. No, so no, no, 12 Surya Namaskar every day ना भी करिए, आप variety लाइए. You can do Vasishthasana, like standing on one wrist. जैसे हम दंडासन की पोजीशन लेते हैं, वशिष्ठासन आप देख लेना, वीके सायंगर जी का है लाइट ऑन योगा में. वो तो उन्होंने एक आर्म ऊपर करके स्ट्रेच कर दी है. वो भी डिफिकल्ट होता है मेरे लिए. Don't do that. Don't do that. Stretch नहीं करो ऊपर वाली जो आप आर्म को, और वो पार्ट मत करो. Just do 180 degree angle with your hands और बॉडी को ऐसे एक सीध में रखिए. That's it. उतना ही करिए और 10 seconds करिए, ठीक है? And then there are handstand if you can do with the help of the wall. Okay. With the help of the wall, obviously you are, you know, facing the wall and you are pressing the hands, and then you're taking the legs up, touching the wall and coming back, touching the wall with your legs and coming back. ऐसी practices करके देखें. And keep on exerting, keep on doing some you know, physical work with your hands. तभी, क्योंकि आपकी शायद टेंडेंसी है इसमें कुछ पेन्स एक्स फील करना. जैसे ही आपने इसको इग्नोर किया इन मसल्स को, ये हो रहा है, दैट वीकनेस सेट्स इन. तो वीकनेस आ जाती है. इसको स्ट्रेंथन करते जाना है. ये आप एक अपने बॉडी के लिए रूटीन सेट कर लें कि आपको रिस्ट को स्ट्रेंथनिंग की रोज प्रैक्टिसेस करनी है. यू नीड नॉट डू सूर्य नमस्कार 12 के 12 डेली. सिंपली हाँ, नो. और चक्रासन की प्रैक्टिस करते रहे. ऊपर लिफ्ट करें, नीचे ले आए, ऊपर लिफ्ट करें, नीचे ले आए, ठीक है? नीड नॉट स्टे देयर, या नीड नॉट स्टे. एंड देन दीज प्रैक्टिसेस, ये और फिर ये करतल शक्ति विकासक, राइट? हाँ, वो सूक्ष्म व्यायाम में ये वाला सूक्ष्म व्यायाम 2 वेरिएशंस है ना इसकी. या ऑल दोस थिंग्स. थैंक यू सो मच. हेलो, एनीवन एल्स? हेलो मैम, मुझे पूछना था, जैसे स्ट्रेस मतलब कुछ भी काउंट करने का ऐसे कोई मतलब जैसे मशीन नहीं है, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते कि कोई कितना स्ट्रेसफुल है, पर नॉर्मली सब बोलते हैं कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो हम एक्चुअली कैसे समझे? मतलब क्योंकि हर कोई बोलता है आजकल कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. एक तो ये वर्ड एक्चुअली डिक्शनरी से ही हट जाना चाहिए. जितनी जल्दी ये पॉपुलर हुआ है और ये इतने सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, एक्चुअली देखना चाहिए कि वो मोमेंटरी फेज है व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और यू फील लिटिल डाउन इन योर लाइफ. थोड़ा सा मूड लो हो जाता है, दैट्स इट. बाहर भी तो आना है ना, बाहर आना है. तो क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो गई लाइफ, तो है क्या एक्चुअली, है क्या? इट्स जस्ट अ स्पर. यू कैन जस्ट चेंज योर मूड ऑल्सो विद इन अ सेकेंड. अगर आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स मूड लो हो गया है तो उसको विद इन सेकेंड्स बाहर भी लेके आइए. ये एक्चुअली अपने ऊपर, अपने कंधों पे होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड नॉट फील डिपेंडेंट कि अब मुझे कोई उठाएगा, मुझे कोई आइसक्रीम खिलाएगा तो मेरा हैप्पी मूड होगा. यू नो, वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो बाहर ढूंढने की बजाय हम अपने अंदर ही देखें कि वाकई में इतना स्ट्रेसफुल है क्या लाइफ. आई हैव सो मेनी थिंग्स टू, यू नो, फील लकी अबाउट. आई हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ टू, यू नो, काउंट ऑन कि आई हैव सो मच. ट्रेंड से लेके you know luxury you have in your life which many people don't enjoy at all, which many people cannot think. आपके पास अपना घर है, right? Many people are on roads, they just don't know अगली रात कहाँ पे आएगी. So I think diverting your mind to such things that you are lucky enough to have so many things, एक तो ये, और एक अपनी हॉबी को परस्यू करते रहना. Whenever you feel something, you know, low, फटाफट बाहर आइए उससे. अगर आप को अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, या इंस्ट्रूमेंट बजाना, या स्पोर्ट्स करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना. कुकिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर. I have known from many people, though I don't go for cooking when I am stressful. So there are many ways to, you know, come out of that thing. और हम कहीं भी जाएं, ये बहुत एक स्लैंग बन गया है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, टेंशन टेंशन टेंशन. तो ये एक, इसको जस्ट एक वर्ड मान के चलिए.
don't take it to your mind कि हाँ stress है. There are many other things to take it to your mind, better things, positive things than to feel कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है. ये सारी देखिए, पानी है तो हमारे काम भी चलते जा रहे हैं. एक दिन अगर नल में पानी नहीं आएगा तो you wouldn't tell कि देखो तुम खराब नहीं होगे, है ना. इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था. मशीनरी है पीछे से, अगर मोटर खराब है, व्हाट यू कैन डू. आप पैनिक तो नहीं करेंगे, ओ माय गॉड आज मेरा कोई काम नहीं हुआ. कोई बात नहीं, 365 दिनों में एक दिन नहीं भी हुआ तो सो व्हाट. तो ऐसे सो व्हाट, एंड यू नो जस्ट let go, let go, let go. Let go should be the punch card in, you know, this inverted commas में stress. I typically don't use this word at all in my life. Regular routine में कभी भी नहीं use करती हूँ, because when it comes to teaching तो बहुत बार निकालना पड़ता है, because I have to teach that word and teach the mechanism what happens in the body. But when you are in this field तो come out of it as early as possible. किसी ने बोल भी दिया है तो उनको बाहर लेके आइए इससे. आजकल कॉमन है, ये वर्ड कॉमन है. टेंशन हो गई है, चिंता है. कुछ लोग दूसरों को जताने के लिए फोन करेंगे, जरूरी फोन करेंगे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है. सो चिंता वर्ड, चिंता चिता समान, एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड. तो उसको उस लेवल तक ना ले जाया जाए कि आप अब लोगों को बोलना शुरू कर दें कि तुम्हारी चिंता है. चिंता मत करिए, सारे अपनी अपनी जगह सेट हैं. They are used to their stresses. They are used to their target-oriented lives. Yes, pray for them and just give good vibrations, good positive thoughts. वो उनको देते रहें. फोन करिए और ये बोलिए आज मैं तुम्हारे में बहुत अच्छा सोच रही थी. So how good it will feel rather than बहुत चिंता कर रही हूँ मैं तुम्हारी. So चिंता will take you nowhere. And best reversible है क्या BP? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है. बीपी जैसे लेवल थोड़ी लग जाता है आपको कि आपको हाई बीपी हो गया. सुना है मैम कि बीमारी नहीं है और कोई बोलता है, क्योंकि आज सच पर्सनली मुझे भी बहुत बार बीपी बीच में 1-1.5 साल पहले हाई रहता था. 6 महीने पहले मैम नॉर्मल आया था, अभी वापस 1.5-2 महीने से फिर 130-90 हो रहा है. तो मैम ये किस वजह से हो सकता है? हाउ ओल्ड आर यू? मैम 32 एंड मेरी फैमिली हिस्ट्री एक्चुअली बहुत मतलब बुरी है एक्चुअली. अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब. ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेना बनता है ना भाई फैमिली का. आई वाज अबाउट टू टेल यू कि 130/90 इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. यू सीम्स टू बी अबव 30, सो आई आस्क्ड यू योर एज. 32 यस मैम. सो ओके, सो 30 अराउंड है ना, आप 30 अबव है. तो 130/90 एक्चुअली अबव 35 एक्सपेक्टेड है. बट सिंस यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो, तो इसमें आपको 130/90 तक स्टिक करना है. फिर कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करिए कि आपको इससे बढ़े ना. टेंडेंसी है आपकी, है ना, ज्यादा होना. तो ऐसे प्रेशर फील होता है चेस्ट में. जैसे मैं योगासन करती हूँ ना मॉर्निंग में, तो अगर मैं होल्डिंग वाले करती हूँ या तो श्वास रोकने के करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि बर्डन है, जैसे चेस्ट में बहुत प्रेशर आता, फिर बाद में रिलीव हो जाता, मतलब शॉर्ट टाइम रहता है वो. ओके, मैंने आपको हाइपरटेंशन के जो बताए थे ना, यूज मोर ऑफ योर लिम्स को ज्यादा, लिम्स से ज्यादा काम ले. जैसे वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेयर्स चढ़ना उतरना करें, क्योंकि इतना भी हाई नहीं है कि आप हार्ट को थोड़ा लोड ना दे सके. ठीक है, तो थोड़ा बहुत नेसेसरी लोड जरूरी है. आप शायद थोड़ी सी सेंसिटिव भी ज्यादा होंगे कि आपको हार्ट बीट तक सुनाई दे रही है, आपको पैल्पिटेशन फील होती है. ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं, डजंट मैटर. लेस सेंसिटिव बनो, जस्ट लेट गो वाले बनो. कोई बात नहीं, हो रहा है, जस्ट आज आया है कल नहीं रहेगा. Okay, and days are not every day is not a replica of the yesterday, है ना. आज का दिन कल की तरह नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही कल होने वाला है. So not all the problems are reversible. Yes, BP is reversible. Why not? आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें और ज्यादा फ्राइड तो छोड़ ही दें. ज्यादा सॉल्टी भी नहीं खाना, ज्यादा शुगरी भी नहीं खाना. मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है ना अभी से? नहीं 130/90 नॉट एट ऑल. जस्ट कीप ऑन मॉनिटरिंग. बस आप मॉनिटर करते जाएं, योगा करते जाओ, और हार्ट को हेल्दी रखने वाली आइटम्स खाएं भी, और जस्ट मस्त रहें. डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन कि आपको ये भी हो जाएगा वो भी. फैमिली में है तो उनको भी हेल्प करें. अगर आपको योग से फर्क पड़ा है तो उनको भी प्लीज मोटिवेट करें कि अगर वो कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे अपने लिए
वो बाहर आ सकेंगे इस प्रॉब्लम से। नो मैम, मेरे पापा एक्चुअली ही वाज अ योगा प्रैक्टिशनर, एक्चुअली कैवल्य धाम में उन्होंने किया था। वो एक्चुअली ही इज नो मोर, बट वो डेली 4 to 6 प्रैक्टिस करते ही थे कंपलसरी मैम। वेरी 4 गुड, to वेरी 6 गुड। मॉर्निंग। ओके, मैम so सबसे that's a बड़ा good सबसे बड़ा example. है, मैंने स्ट्रेस जिंदगी का निकाला है कॉमेडियन शोज देख के। मैं रोती भी रहती थी और कॉमेडी शोज देख के हंसती भी रहती थी। वेरी गुड। Okay, और you मैंने 10 must be साल fan में of 10 Kapil साल में Sharma then. आई लाइक इट। जब भी मेरे को ऐसा कोई स्ट्रेस होता है ना, निकालो स्ट्रेस, हंसो हंसो। हाँ, वो शोज देखते देखते आंसू भी निकलते हैं और हंसती भी रहती हूँ, तो स्ट्रेस चला जाता है। yes, एंड yes, लाइक इन that's a good way. योगा आई हैव लूज लाइक वेट, मेरा जो कम है 15 kg वेट कम हुआ है। हो। वाओ। लेकिन Okay, लेकिन मैंने nice. स्लोली करा है। ये नहीं, मैं आई कैन नॉट लीव माय खाना नहीं छोड़ सकती, लेकिन रूटीन्स के साथ। और ऐसे कोई जल्दी नहीं है जिंदगी में, खाओ पियो मस्त रहो, धीरे धीरे जो है अपना वेट लूज करो। Okay, best weight is that you can carry your body. बस बेस्ट वेट वही होता है। और फील फिट करना, किसी के लेकिन नंबर अभी देख वो नहीं होना कि वो हाँ नहीं, लेकिन अभी 70 है तो 70 से जो आधा किलो बढ़ता है ना, तो खिचड़ी दही पे पहुंच जाती हूँ। Okay, you're conscious enough. या वेरी कॉन्शियस इनफ। Okay, good. Anyone else? मैम कैन वी गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, अगर आगे कोई क्वेश्चन हुआ तो सो दैट वी कैन आस्क। हाँ, yeah, I can tell sir to circulate my number, no problem. थैंक यू। एक सेशन लीजिए ना इस पे, सब मतलब क्रियाज और ये आसना, सिंपल आसनास है उस पे। You want practical session? Yes ma'am, very much. Okay, what time suits you? यही वाला 2:30 से हम लोग 4? एडजस्ट कर लेंगे, आप कितने बजे भी बोलो, उससे 4 घंटे पहले हम खाना खा लेंगे, डोंट वरी। Okay, I'll let you know. Just our routine. Sir. और संडे अगर रहेगा तो सबके लिए भी ठीक रहेगा। Okay. And practicals में बहुत कुछ आ जाता है एक्चुअली। क्रियाज नहीं करा पाऊंगी because क्रियाज I personally don't feel. हाँ, sorry. तैयार है, बहुत कुछ ले लीजिए। नहीं, बहुत लंबा सेशन चल सकता है, तो हम कुछ चॉइस की प्रैक्टिसेस ले सकते हैं। And I'll see what time suits me and then I can tell Swati ma'am or ये प्लान कर दीजिए। Yes. मैम प्लीज गिव अस सम डिफरेंट ब्रीथिंग, क्योंकि टेक्निकली वो जो करना है ना, इसलिए मतलब टेक्निक जरूरी है इसके लिए। कैसे भी करे उसका फायदा नहीं होता है, वो इतना मतलब रीच नहीं होता है वो लिम्स तक, या प्राण शक्ति इतनी सर्कुलेट नहीं हो पाती है अगर करेक्ट पोजीशन में या ऐसे ना करे तो। हाँ, वो तो है ही। हाँ, टेक्निक्स समझना बहुत जरूरी है। आप तो पहले से योग सिखा रहे हैं। मैं करती हूँ, मैं सिखा भी रही हूँ योग। फिर भी मुझे सीखना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ कभी भी, मैं मतलब मुझे इम्प्रूव करना अच्छा लगता है। और ये जो डिप्रेशन के केसेस थे ना, वो मैंने मतलब मेरी बैच में बहुत सारी ऐसी थी जिसका ब्रेस्ट का एक कैंसर हुआ का ऑपरेशन हुआ था, और एक नाइजीरिया से थी, उनका भी बहुत 11.3 था उनका HbA1c लेवल, तो अभी दिस इज नॉर्मल और 300 तक उसका ये चल गया था, शुगर हो गया था। नॉर्मल। वेरी नाइस। हो रहा है, मतलब ये योगा से होता है। These are the success cases you must share. Very good. Yes. I will definitely share. हाँ, बढ़िया। Ma'am, I had a query for diabetes and hypertensive patients. The people who have not been into yoga and they come at an age of 65, 70 plus. Is it possible for us to make them do anything that can change? Because they have a very rigid mindset. ऐसा नहीं है कि see they have come to you means they are quite convinced that yoga can work wonder for them. Yoga can create some magic. कुछ तो कर सकता है योग, जो इतने सालों के बाद अब वो योग में आए हैं, कुछ ना कुछ फेथ लेके आए हैं। They have heard some good successful cases that they have turned up to yoga now. So you have to maintain that faith and that respect for your field. तो आप उनको सिंपल प्रैक्टिसेस जो भी मैंने लिस्ट में दी हैं, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, जरूर कराइए।
नेवर get demotivated कि अब तो वो इतनी एज के बाद आए हैं. Doesn't matter. They can still do some practices which can, reverse their condition, which can at least stop their condition worsening. ठीक है, शुगर अगर 200 जा रही है तो उससे आगे ना बढ़े, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कराइए, पैनक्रियाज पे मसाज हो जिससे, ठीक है, that you can do. The person who was asking I me have for a case practical, because the person is not come, but somebody has got, like one of the person's son has got him. He is not convinced that yoga can help him, but the son has got and now he's past, he's 72, 73, so anything that is told to him, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, like, that's what he said. already, हाँ, तो बुरा तो भी तो किसी कुछ के, नहीं होगा ना, अगर कर भी रहे तो बुरा तो कुछ नहीं होगा ना, ये आप हाँ, कन्विंस बुरा कर भी दीजिए नहीं उसको। होगा. और ऐसे पेशेंट को सीधा अनुलोम विलोम करा देना चाहिए. आप शांत हो जाओ पहले, कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं. 2-3 क्लासेस उनको सिर्फ प्राणायाम करा दीजिए. वैसे भी विपश्यना, 72 उनको एज तो है. विपश्यना के लिए भेज दो। यस, डिफिकल्ट. पेशेंट खुद कन्विंस नहीं है, अगर आप बहुत फोर्सफुली उनको बिठा के करवा रहे हैं, आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि देयर शुड बी सम सिंक बिटवीन यू एंड द पेशेंट, हु इज फॉलोइंग यू. थोड़ा सा एक कॉमन वाइब्रेशन पे आ जाना चाहिए, कॉमन एक फ्रीक्वेंसी पे बात होनी चाहिए, नहीं तो फिर इट्स डिफिकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स. थोड़ा सा उनको प्राणायाम पे पहले डालिए, धीरे धीरे उनको बोलिए इनसे बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे. ऐसे ऐसे करके कन्विंस करिए, मोटिवेट करते रहिए. एंड यू आर नॉट टॉकिंग एनी फॉल्स स्टोरीज ऑल्सो. हुए हैं तो इसीलिए आप बोल भी रहे हैं, है ना. And it is good if you want a practical class, please I suggest you कि आप एक list of practices बना लें. Okay, ma'am. Some Yes. 45 minutes. I have already made. Yes. Out of all the techniques which you want कि I should teach, ठीक है. And Okay. I will only have I think 45 minutes to 50 minutes to do that. तो 1 घंटे से ऊपर ना जाए सेशन, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस लगती हैं कि आपको सीखनी है, एंड एटलीस्ट मिनिमम 5 to 7 people who can spare time and who want the practical session. So Ma'am, let I me know. want. Yes, ma'am. Yeah, I yeah. want. We all Right, want. ma'am. We all want. We all want, ma'am. Okay. All में कितने आ रहे हैं पहले बताइए, कितने लोग हैं all में? भारती. मैम एटलीस्ट 7-8 तो होंगे मैम. 7-8 हैं. Yeah, definitely. Minimum 7-8 है. ठीक है. चलिए, इस हफ्ते में I'll tell you then. Within this week only we can do one practical session. Okay. So that it will be fresh in your mind. अभी Yes. जो पढ़ा है आपने वो थोड़ा सा फ्रेश रहेगा आपके माइंड में. और खाना वाना 3 घंटे पहले प्लीज खा के रखें. ज्यादा strenuous नहीं होगा, because I will just tell the technique and you are going to follow, and not more than 10 rounds of each practice. I think अगर आसन है तो 30 seconds से ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करेंगे, है ना. Just to get into the practice and come back from the practice. वो थोड़ा टेक्निक ध्यान से देख लीजिए. Okay, and whatever new practices you have learned in this series of yoga therapy lectures, जो new techniques है, जैसे drill walking है, ताड़ासन walking है, आपको लगता है कि ये new practices हैं, तो वो आप प्लीज वो भी लिस्ट डाउन कर लें. नई प्रैक्टिसेस भी सीख लेना, और पुराना जो आपको क्लैरिफाई करना है वो भी करना. Okay. Yes, ma'am. Okay then. Ma'am, I have a query. Yeah, tell me. मैम, माइग्रेन के लिए कुछ भी कवर नहीं हुआ है, तो आई जस्ट वांट टू नो सीरीज ऑफ आसनास, इफ यू कैन सेंड स्लाइड्स. Are you running? Where are you? Yeah, I'm running. I'm outside actually, walking. Okay. हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं. Actually माइग्रेन के लिए कुछ भी कवर नहीं हुआ है, so I have a severe migraine problem, so I wanted to know the asanas. माइग्रेन के लिए एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट सेट ऑफ वो हैं. हेड से रिलेटेड नेक मूवमेंट्स हैं. क्रियाज में जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, कुंजल, चारों दे आर गुड. एंड माइग्रेन में सबसे ज्यादा तो है आपको सेंसिटिविटी से दूर रहना है. लाइक यू डोंट हैव टू बी सेंसिटिव इनफ टू थॉट्स, सेंसिटिव इनफ टू सिचुएशंस, सेंसिटिव इनफ टू सर्टेन फूड्स. कुछ स्पेसिफिक खाने खा के भी अगर आपको एलर्जी है, वो भी आप ध्यान रखें कि आपको
किस फूड आइटम से आपको एकदम से साइनस की पेन सॉरी माइग्रेन की पेन ट्रिगर हो जाती है? ठीक है मैम, एक्चुअली बहुत सारे कुछ रीजन से होता है, जैसे धूप से भी होती है और हार्मोनल धूप से भी चेंजेस हो जैसे जाती है। पीरियड के ओके नजदीक भी ओके होती है, ओके सो लाइक ऑल द रीजंस आई ट्रिगर माइग्रेन। प्राणायाम में शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, क्योंकि टेंशन है ना, ये सारी नर्व एकदम जकड़ जाती हैं आपकी, ये तो हेड की, सो उसको रिलीव करने के लिए एवरीथिंग कूलिंग यू हैव टू गिव टू द सिस्टम। नो भस्त्रिका, ओके। कपालभाति भी करनी है तो 100 स्ट्रोक से ऊपर नहीं करनी है, बट करनी है, दैट इज गुड, ओके। एंड अनुलोम विलोम ज्यादा बढ़ा दें, अगर आप 21 राउंड्स तक डेली कर सकते हैं तो करें, और जल नेति जरूर करें, सूत्र नेति भी कर सकते हैं तो जरूर करें, एटलीस्ट फॉर 15 डेज डेली। ओके मैम, ओके, एंड थैंक यू। कूलिंग आइटम्स खाएं, और 2-3 प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हेड रोलिंग है, मे बी आई कैन इंक्लूड इट व्हेन आई डू प्रैक्टिकल्स विद यू। हेड रोलिंग करेंगे तो सिर बहुत लाइट हो जाता है, जस्ट यू हैव टू रोल द हेड इन वज्रासन, टेकिंग द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर इन फ्रंट। वो भी एक व्यासा की टेक्निक है फॉर माइग्रेन पीपल, ठीक है। ये सारे प्रिकॉशंस ले ले। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम, आई हैव वन क्वेरी। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या योगा थेरेपी दे सकते हैं? किसके लिए? गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन्स? हाँ, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या कुछ? उसकी वो क्या वो है, डोमेंट है कि रोज के रोज पेन आती है? नहीं, पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 साल पहले रिपोर्ट आया था गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसके बाद कुछ पेन नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो फिर उसके बाद कभी चेक कराया कि स्टोन बड़ा है साइज का या वैसे? नहीं, साइज सेम है। 4 साल बाद चेंज किया था, 4 इयर्स बाद, साइज सेम है। सेम है, ओके। देखो, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है कि अब आप कपालभाति करेंगे तो स्टोन मेल्ट होके वो बाहर के रास्ते निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खान पान में ज्यादा ध्यान रखें, योगा तो एज इट इज करते जाओ, बस ज्यादा प्रेस नहीं करना उस ऑर्गन को, ठीक है। जैसे आप मंडूकासन करते हैं तो हाथ का प्रेशर जाता है ना लिवर पे भी और पैनक्रियास पे भी आगे, तो उसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है उस ऑर्गन के साथ। जैसे हम बोले कहीं पे इन्फ्लेमेशन है या कहीं पे हर्निया की प्रॉब्लम है, आपका हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया तो बहुत बाहर को निकला होगा पेट, तो जहाँ पे हर्निया की दिक्कत है, जैसे गांठें बन गई हैं, इन्फ्लेमेशन है, उस एरिया को बिल्कुल हम छेड़ते नहीं। इवन योग में भी और वैसे भी कोई भी एक्सरसाइज भी करो तो वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको, नहीं तो पेन शूट अप हो सकती है। अब आपको पता है कि स्टोन है, if it is dormant, if it is not increasing also, in yoga there is nothing to decrease the size of the stone. स्टोन का साइज डिक्रीज नहीं हो सकता, बट थैंकफुली इट इज डोरमेंट, इट इज नॉट पेनिंग यू, है ना, पेन नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आप खा के स्टोन से भी रिलीव हो सकता है, बट क्योंकि वो गॉल ब्लैडर है, उसकी नेक छोटी होती है ना, वो गॉल ब्लैडर तो एक बड़ा सा बलून की तरह है, बहुत बड़ा नहीं, इतना सा बलून की तरह, और वो उसमें बैठाया हुआ है अंदर स्टोन। तो डॉक्टर्स विल आल्सो से कि ऑपरेशन कराने की अभी कोई जरूरत नहीं है जब तक कि आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तब तक पेन नहीं हो रहा है और कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। आपकी बाइल अच्छे से स्टोर हो रही है, दैट मीन्स स्टोन के बावजूद बाइल स्टोर हो रही है और फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से चल रहा है, भूख अच्छी लग रही है। ऐसे बोल रहा है कि धनुरासन करना चाहिए उसके लिए। कौन सा आसन? धनुरासन। धनुर? हाँ, धनुरासन। धनुर से तो आपको प्रेशर पड़ जाएगा उस एरिया में, कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं करती हूँ तो कुछ फील ही नहीं होता कुछ। हाँ, अभी नहीं हो रहा है, बट रोज रोज नहीं करना चाहिए और उस पर प्रेशर डालना नहीं है आपको, आइडियली नहीं डालना चाहिए। तो आप हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो चलो ठीक है, और साइज कई बार बहुत माइन्यूट होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर साइज बढ़ना शुरू हुआ तो फिर धनुरासन में पेन आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो एब्डोमिनल जो हमारे आसन है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। शलभ आसन कर लीजिए, बट धनुर इज डायरेक्ट प्रेशर, आप नेवल पे ही तो उठते हैं, नेवल के सहारे बॉडी को उठाते हैं, ठीक है। मैम, ताड़ासन का तो मुझे फील होता है, ताड़ासन जब होता है ना राइट साइड से, तब मुझे फील होता है कि पेन हो रहा है। तब आ रही है पेन आपको?
हाँ तब फील होता है कभी कभी, ताड़ासन कर ज्यादा फोर्सफुली किया तो फिर कहाँ पे पेन आती है, कहाँ पे पेन आती है राइट ताड़ासन में? साइड गॉल ब्लैडर स्टोन की उसी जगह, जो हैंड हैंड से ऊपर बॉडी करके लिफ्ट लेती तब। मैंने जहाँ से योगा करवाया मैंने उनको भी पूछा था जहाँ से मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया है, मैं अहमदाबाद से हूँ। तो मुझे उन्होंने वही बोला कि वो आसन नहीं करना, लेफ्ट साइड का करो, लेकिन राइट साइड तो फिर वो आसन ही छोड़ दो। वही मैं कह रही हूँ कि वो आसन आप नहीं करो जहाँ पे आप स्टिमुलेट कर देते हो ना उस ऑर्गन को, वो नहीं। ठीक है, वो ग्लैंड नहीं है। अगर ग्लैंड हो तो आप प्रेशर डालो, फिर वो प्रेशर रिलीज होगा तो हार्मोन सिक्रीट होंगे। आज ही हमने वो पढ़ा लेसन में, ठीक है, एंडोक्राइन हेल्थ के बारे में। बट यहाँ पे अब आप एक वो बाहर से एक फॉर्मेशन हो चुकी है ना, छोटे छोटे कंकर आके एक बैठ गए हैं अंदर, तो वो एक कंकर बना हुआ है। तो उसको आपने ना तो धनुरासन से आप स्टिमुलेट करें उसको, और ना ही आप ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन करें। ताड़ासन करें नो प्रॉब्लम, बट उसको आप अगर लैटरल बेंडिंग दे देंगे वो ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन हो जाता है, वो नहीं करें। अच्छा हाँ, वो मत करें, वो अवॉइड करें, दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। शांति मंत्र, प्लीज क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं इस कोर्स का थोड़ा फीडबैक लेना चाहूंगा सबसे, कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आगे के लिए लोगों के लिए वो लाभदायक होगा। तो अगर कोई देना चाहता है इसके बारे में फीडबैक तो वो दे सकता है। या कैसा रहा है इसका सेशन मैडम के साथ में आप लोग? It was a very nice and excellent informative session. Okay, thank you. She has been good, you enjoyed best it. Teachers Ma'am, that we have had in this course. Very, very, very detailed and very passionate. One of the best teachers that have. Yes, very happy. yes. We are very happy, ma'am. The passion gets reflected in you also, because when you ask questions, I'm double motivated to learn more and deliver more in my next set of lectures. And good if you got something new, and please implement it also in your classes and on your body first, and then to your health and your practitioners जो साधक आपके पास आते हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। सिर्फ सुनने में आपको कभी कभी लगता है कि वाओ एंथुसियास्टिक टीचर हैं, अच्छे से हमने नोट कर लिया है, बट उसका असली फायदा तब है जब आप अपने लेक्चर्स में द सेम फील और सेम एंथू के साथ उनको भी सिखाएं और अच्छे से उसका रिजल्ट भी देखें। दैट इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ आर हैविंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। सिर्फ थियरी से बात नहीं बनेगी, खुद भी करना है और कराना भी है। मैम हमने तो शुरू कर दिया है सब कुछ। मैम 10 days में जो कवर किया है, it's marvelous, very well. Each and every second of the lecture you have used in 10 days, vast you have covered. So yes, that is really commendable, ma'am. Very, very. The details and everything has been covered so well and very knowledgeable, very to the point. And पूरा जैसे आप बोलते हैं तो एक एक चीज अंदर जाता है, and we are always curious to attend your class. At least I am like looking forward to attend your class every day. So very wonderful experience. Ma'am, even because you're very lively and you take very much interest in the classes, everything. Like it has been a wonderful experience. कोर्स मॉड्यूल एमएससी योगा थेरेपी या पीजी डिप्लोमा योगा थेरेपी से लेके बनाया गया था, और मैडम ने काफी कम समय में और बहुत ज्यादा कवर किया। Yes, true. बिल्कुल बिल्कुल। But sometimes I feel there is a overlapping of so many, like I have to rush with some topics which maybe
मुझे लग रहा था आप बोल देंगे मैम इतना एक ही दिन में करा देंगे तो फिर बाकी yes. दिन क्या कराएंगे. हाँ, even I feel as a student to sink in so much in one lesson, it's quite a heavy for you also. For me तो मेरे को बस बोलना है, आपको समझाना है, but for the person who is receiving so much in a day, attention span भी कोई चीज होती है कि 40 मिनट से ऊपर एक स्टैंडर्ड लेक्चर का टाइम नहीं जाना चाहिए. But you also afforded so much time to listen, and I also went over the time. Most of the days 4:40 तक हो जाते थे, आज भी हो गए हैं. Like मैम जैसे I am not a biological student, plus मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. योगा में भी आया, it just happened. So मुझे लग रहा था कि योगा थेरेपी मुझे करना है because I am like into yoga, तो मुझे कर लेना चाहिए. मुझे लग रहा था ये पोर्शन तो काफी बोरिंग होने वाला है. So but मुझे करना भी है. But the way you taught had been so interesting कि मैं मतलब क्लास के आगे पीछे भी ना मैं बॉडी ऑर्गन्स देख रही हूँ. And I'm starting being grateful to the liver, lung, like much more after your classes. My God, हमारे बॉडी ऑर्गन्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं. Obviously. Like so much thank you for that. एक नया परसेप्शन मिला अपनी बॉडी को ही, अपने बॉडी ऑर्गन्स को देखने का. हाँ हाँ हाँ. शोभना जी को कोर्स में ले आने के लिए काफी फॉलो अप करना पड़ा. Yes, मैं जरूर ही आना चाहती थी इसमें. I was pushing myself into it. But thank you so much. योग साधक होने से ज्यादा इस वक्त हमें पूरे इंडिया को, वर्ल्ड को योगा थेरेपिस्ट की ज्यादा जरूरत है. योग साधक हम अपनी बॉडी के लिए तो होते ही हैं, एंड स्पेशली इफ यू हैव सफर्ड फ्रॉम अ प्रॉब्लम व्हिच आई हैव सफर्ड. मेरे को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था एट द एज ऑफ 17, एंड फ्रॉम 17 years लाइक आई वाज इन +2 आई थिंक. तो जैसे मेरी टीचर ने मुझे पैशनेटली सिखाया, एंड आई हैड जस्ट वन एम इन लाइफ कि मुझे योगा थेरेपी में जाना है. अब ये है कि whoever you meet, it is like a label कि योगा के बारे में ये जानती है, इससे पूछते हैं. So that feels very nice, satisfying. And for you also, you have treated so many, जैसे अभी फीडबैक दे रहे थे, मृणाली I think her name. बहुत अच्छा लगता है कि किसी को आपने ट्रीट किया है और वो फिर लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं आपका नाम भी, और आपको वो मन ही मन अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं कि उसने मुझे ठीक कर दिया. Right? That is quite satisfying. Thank you so much. So here we close, and I'll let you know the day when we do practicals together. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. Take care. Bye. Bye bye. Bye.